Yeah. Just need a confirmation. Can you all see me now? Yeah. Yes, no. Yes. You don't need to say. You don't need to say. Just type on chat. Yeah, it will just distract me. Yeah. Yeah. Okay. Can you see this star which I have just drawn above Adani? This is important, guys. That's why I'm asking. Chalo. Chalo. Before we start the session, let me make few rule of the house, right? Number one, anyone over here, even a single person who does not understand Hindi at all, if that's so, I'll conduct the entire session in English. That's not an issue. But I would like to have it mix of Hindi and English. वो feel आता है मेरे को. Anyone? Perfect. 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 एक चीज और बोलता हूँ. Session थोड़ा सा extend हो सकता है. मतलब we could go till 9:15, 9:30. I hope that's okay with everyone. कोई problem है? I can guarantee you that there are 40 people on the call right now. If you give 1.5 hours each, that will be 60 man hours, and I will create the value worth 60 man hours, right? That's my guarantee. We are good to go? Chalo, perfect. Perfect, perfect. Yeah. Those who want to leave can leave. That's not an issue, right? Now, बहुत सारी चीजें हुई अडानी ग्रुप के साथ, and I'm just removing this particular thing. कैसे एक 16-17 साल का लड़का गुजरात से मुंबई आता है, ज़वेरी बाजार में he started working, right? And by the age of 19 he became the millionaire that point of time. His brother called him to Ahmedabad again to handle his manufacturing business, right? He left everything over there. He went to Ahmedabad again, right? So, and started manufacturing business, then venture out into multiple infrastructure related projects, and then finally knocked off Mundra Port. That was like one of the turning event for the Adani group and Adani family as a whole. क्या अडानी का जो ग्रोथ हुआ है, right? Was it a overnight growth? Absolutely not. If you go back in the history, right? Adani Group was first listed in 1997. So it was the company worth listed in 1997. इसका मतलब और पहले से काम कर रहे होंगे, right? So it was like a 30 years of hard work, labor, a lot of ups and downs, a lot of political connections, a lot of different governments. कई governments आई, कहीं गई. कांग्रेस का regime आया, बीजेपी का regime आया गुजरात में, right? Certainly. But last 2-3 years में, do you guys feel that जो last 2-3 साल का growth था ना, वो inorganic growth था? So what happened is, if you see last 30 years trajectory of Tata Group, right? Or if you see the last 70 years trajectory of Tata Group, or 100 years trajectory of Tata Group, or last 40 years trajectory of Reliance Industries, the growth is linear. They are growing, growing, growing and growing. Adani के केस में क्या हुआ पता है? जो bamboo investing होती है ना, everything was flat and suddenly it was shoot up. Do you feel that last 2 years के अंदर जो price में increase आया है, that is inorganic? Yes or no? Yes. Everyone, भाई सिर्फ एक ऋषभ लिख रहा है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, take it as if I am threatening you. ठीक है? I won't mind. I will shut the session then and there only. मैं seriously बता रहा हूं, I'm not kidding. ठीक है? मेरे को response अगर नहीं मिलेंगे तो I will shut the session. मैं 15 मिनट लगेगा, I'll explain everything and I'll go away. ठीक है? Perfect, 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 perfect. See, okay. So perfect. Okay, I won't. Okay, now it's audible. Am I audible now? Perfect, 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 perfect. So I won't tell you the facts. ठीक है कि ये हुआ 27 जनवरी को, ये हुआ 28 को, ये हुआ 29 को अडानी ने ये रिस्पॉन्स दिया, वो सबको पता है. नहीं पता है, just go on my LinkedIn page. I have bombarded post after post, right? When these things happening, we are here
टू गेन द लर्निंग आउट ऑफ इट। आप बताओ क्या समझना है आपको, क्या फैक्ट समझना है कि केस के फैक्ट्स क्या हैं, या उसके पीछे की लर्निंग को ग्रास्प करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? व्हाट डू यू वांट एवरीवन? भाई बहुत मेहनत करवानी है मेरे को आपसे, आप बैठ के सिर्फ सुन नहीं सकते, ठीक है? एल लिखो ना, पूरा लर्निंग मत लिखो, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, जेन जी, राइट? सो सबसे पहला क्वेश्चन जो इमीडिएट मीडिया अटेंशन एक्वायर करता है, दैट इज वेदर अडानी इज कॉन और जीनियस। I don't like to make any disclaimer at the beginning of the session. It will dilute, right, my entire session. मेरे को जो disclaimer देना है मैं last में दूंगा. Whether Adani is a con or a genius. See, what defines a con, ठीक, and what is a genius? We'll understand. But पहले समझते हैं ये चीज trigger कैसे हुई. We all know Hindenburg Research. It's a research house, on, I would say not a research house rather. They're a short seller firms. एक चीज और, इस सेशन में अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आपको लगते हैं विच यू आर हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप पेन कॉपी लेके बैठिए, यू वोंट बी एबल टू वॉच रिकॉर्डिंग अगेन। कोई रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है डजंट मैटर, आप नहीं देखोगे रिकॉर्डिंग, मुझे पता है, और सिर्फ वो वर्ड लिख के रख लो सो दैट यू कैन गूगल इट, इट विल मेक मोर सेंस टू यू। तो हिंडनबर्ग रिसर्च, इट्स नॉट अ रिसर्च फर्म, दे आर द शॉर्ट सेलर फर्म। इसको दे आर सो शॉर्ट सेलिंग फर्म यूजुअली जो होता है ना, उसका जो बड़ा डाइसेक्ट होता है दैट इज इन्वेस्टर एक्टिविज्म और एक्टिविस्ट इन्वेस्टर। इन सबका बाप कौन है? जो एक्टिविस्ट इन्वेस्टर होते हैं इनका फादर कौन है? फादर इज बिल ऑकमैन। आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड ऑफ हिज नेम, बट बिल ऑकमैन इज फादर ऑफ एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग इन द वर्ल्ड, राइट? He just turn around multiple businesses including Disney. Somebody says Herbalife, right? So Disney was almost on the brink of bankruptcy, bankrupt होने वाला था. What they do, they buy the businesses जो बहुत distressed condition में होते हैं, they buy it at an extremely cheaper valuation. They put their nose, वो अपनी they put their nose in the day-to-day business and they make it turn around and they exit from the company once the business and the valuation become attractive. That's how they operate, right? So usually जो लोग प्ले करते हैं ना, वो लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड पे प्ले करते हैं। कभी भी ऐसा लाइफ में बेट मिले ना खेलने को आपको, जहां आपको जीरो रिस्क और अनलिमिटेड रिवॉर्ड हो, या नेग्लिजिबल रिस्क और अनलिमिटेड रिवॉर्ड हो, पूरे लाइफ वो बेट लेने का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ ओवर हियर, राइट? सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, whether Adani is a con or genius. Before that, we need to understand what was the motive behind the Hindenburg research, right? What they have done. What they've done is they had shorted Adani USD bonds and Adani का जो non-India traded derivatives है, उसको पहले उन्होंने short किया and then they released the report. And I would say it's a sensational report, no doubt about it, right? And did they done anything wrong? Absolutely not. यही होता है और यही करते हैं, right? This is what short seller firms do all the time. क्या किसी को भी डाउट है या किसी को भी ये चीज पता है या नहीं पता है या पता करनी है कि बॉन्ड को शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है? इट इज लीगल, इट इज लीगल, इंडिया में भी लीगल है, देयर इज नो लॉ, इट्स अ ग्रे एरिया. Does anyone want to know that how to make money by short selling the bond? स्टॉक का तो सबको पता है ना, ऊपर खरीदते हैं नीचे बेच देते हैं, ठीक है? सॉरी, नीचे ऊपर बेचते हैं नीचे खरीद लेते हैं, दैट वी ऑल नो, राइट? बट हाउ दे डू इट फॉर द बॉन्ड? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इसको बहुत आराम से समझना, अच्छा कंसेप्ट है, शायद आपको हेल्प करेगा आगे. एक बॉन्ड है मार्केट में, ठीक है? मार्केट में देयर इज दिस बॉन्ड विच इज से फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग एट 1000 रुपीज. मार्केट में 1000 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है. जो इसका कूपन रेट है वो 8% है. ये कूपन रेट 8% है. ये बॉन्ड जस्ट अभी रिलीज हुआ है, लाइक अ मिनट बिफोर. देयर वाज एब्सोल्युटली, इस बॉन्ड का जो प्राइस है उसमें जीरो इंफॉर्मेशन डिस्काउंटेड है, कोई इंफॉर्मेशन एडेड नहीं है, प्लेन बॉन्ड लिस्ट हुआ है, दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी का बॉन्ड है, ऐसा समझ लो.
ये जो दो चीजें हैं ना, दीज आर कॉन्ट्रैक्चुअल, ये कभी नहीं हिलेंगी। क्या नहीं हिलेगी? एक तो फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड विच इज 1000 रुपीज, एंड सेकेंड इज द कूपन पेमेंट विच इज 8%। कोई बता सकता है कूपन का पेमेंट कितना होगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज एवरी ईयर? ये जो बॉन्ड इशूअर है, बॉन्ड होल्डर को कितना कितना पैसा देगा कूपन इंटरेस्ट में? 1000 इंटू 8%, 80 रुपीज, राइट? ये कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, ये देना ही पड़ेगा आपको। यू कैनॉट होल्ड इट, राइट? नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट विच कम्स इनटू पिक्चर, विच इज YTM, और YTM आई वुड से यील्ड। अभी क्या हो रहा है ना, जब ये बॉन्ड जस्ट एक सेकंड पहले लिस्ट हुआ है मार्केट में, तो इसका यील्ड कितना होगा कोई बता सकता है? इसका यील्ड एग्जैक्टली 8% होगा। 8% का मतलब यह है कि अगर आज आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, अगर कोई मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में जाके बॉन्ड बाय कर लेता है, तो उसको जो प्रॉफिट होगा ना, दैट इज 8%। आई होप दैट इज एब्सोल्युटली ओके विथ एवरीवन। अभी तक मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, आई एम नॉट इन हरी। चलो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड what happened. This 8%, right? It's nothing but, is it a expectation of the market? सोच के बताना, क्या ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन है? कूपन रेट की बात छोड़ दो, मान लो ये 9% चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, से फॉर एग्जांपल अब 10-15 दिन आगे निकल गए और रिजल्ट थोड़ा खराब हुआ कंपनी का और ये 9% पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि मैं अगर इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 9% रिटर्न तो मिलना ही चाहिए? यस, एब्सोल्युटली राइट। अब मान लो अगर जो कंपनी थी उसमें कोई फ्रॉड निकल के आ गया, तो क्या आप 9% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन पे उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे या बढ़ के इन्वेस्ट करोगे? यू वांट हायर रिटर्न्स फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। एवरीवन जल्दी से सब बताइए। यू वांट अ हायर रिटर्न, से फॉर एग्जांपल दैट रिटर्न इज 30%, तो क्या यील्ड का शूटअप हो गया? यहां पर 9% से 30% पे यील्ड शॉर्ट हो गई बिल्कुल। रातों रात हुआ था जब यूक्रेन पे अटैक करा था रशिया ने। जस्ट गो एंड चेक व्हाट हैपेंड विद द रशियन USD बॉन्ड्स लिस्टेड इन द US मार्केट्स, राइट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सिर्फ ये यील्ड बढ़ी है, ये यील्ड बढ़ के 9% से 30% हो गई। इसका मतलब क्या है? कल तक जो इन्वेस्टर या जो प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ द बॉन्ड इन द सेकेंडरी मार्केट जो 9% एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मैं आज इस 8% के बॉन्ड में, 8% कूपन है, मैं फिर बोला इसको हटा दो पिक्चर से अभी, ये कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी कंपनी 8% ही पे करेगी 1000 रुपीज पे, ठीक है? पहले बंदा 9% डिमांड कर रहा था, उस रिटर्न से उसकी एक्सपेक्टेशन 9% थी, अब एक्सपेक्टेशन 30% है, right? Now when the expectation is increased to 30%, right? अडानी के केस में 37% तक यील्ड चला गया था। यील्ड बढ़ के एट वन पॉइंट ऑफ टाइम US मार्केट में जो अडानी के USD बॉन्ड लिस्टेड है वो 37% चले गए थे। मैं उसको राउंड ऑफ करके 30 पे लेके आऊं टू ईज ऑफ कैलकुलेशन आप लोगों के लिए, ठीक है? अब समझना, मैंने इस बॉन्ड को परचेज करा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। What I've done is I've purchased the bond when yield is 30%. इसका मतलब यह है कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट करता हूं उस पर मेरे को 30% रिटर्न चाहिए हर साल, यानी 3 साल के अंदर बॉन्ड मेरा फ्री और उसके बाद कमाई कमाई। यस और नो? यस और नो एवरीवन? परफेक्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, क्या मुझे 1000 पे 30% मिलने लग जाएगा अगर मैंने 30% यील्ड का बॉन्ड खरीद लिया है? तो सोच के बताइए, क्या मुझे 1000 पे 30% मिलने लग जाएगा इफ आई बाई द बॉन्ड जिसका यील्ड 30% है? क्या बोला था हमने शुरू से? व्हाट विल आई टोल्ड यू? ये कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है ना, वो कंपनी के ऊपर पैसा पे ही नहीं करेगी। कंपनी कितना पे करेगी? कंपनी पे करेगी 80 रुपीज। मुझे बॉन्ड का प्राइस इतना नीचे लेके आना है कि मैं उस प्राइस पे अगर बॉन्ड को खरीदूं और 80 रुपीज उस प्राइस का 30% हो, कितना हो रहा है? कैलकुलेट करके बताइए कितना हो रहा है? 250 समथिंग, और 250 होगा यार। 30% ऑफ व्हाट? 250, 260, 264? यस और नो? 770 कैसे होगा वरुण, क्या बात कर रहा है? 770 का 30% 210 रुपीज होता है भाई।
266 होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस 8% कूपन बॉन्ड की यील्ड बढ़ के 30% हो जाती है तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो 1000 रुपीज से फॉल होके 266 रुपीज पे आ जाएगा। यही शॉर्ट सेलिंग होती है। मैंने 1000 रुपीज पे बॉन्ड को सेल किया और 266 पे बॉन्ड को बाय कर दिया। क्या आपको इस चीज समझ में आई है जो मैंने समझाने की कोशिश करी है? एवरीवन, ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि पैसा कैसे बनाया हिंडनबर्ग ने। No, it does not happen in OTC market. What is CR? CR is coupon rate. Coupon rate means जब वो डिबेंचर इशू हुआ था तो उस डिबेंचर के फेस पे क्या इंटरेस्ट रेट लिखा था। जब डिबेंचर का आईपीओ आता है, डिबेंचर का आईपीओ नहीं आता है वैसे, डिबेंचर का इंडेंचर होता है, बॉन्ड इंडेंचर बोला जाता है उसको, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज। जब बॉन्ड इंडेंचर इशू हुआ तो उस बॉन्ड इंडेंचर में कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी कितनी थी। आप भले ही 266 रुपीज में आज बॉन्ड खरीद रहे हो, लेकिन व्हेन यू विल बी द होल्डर ऑफ द बॉन्ड ऑन द ड्यू डेट, हाउ मच कंपनी विल पे यू? कंपनी विल पे यू 80 रुपीज। वाई? बिकॉज आपके पास 1000 रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड है जिसकी कीमत आज मार्केट में 266 थी। यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू बॉट इट। ये समझ में आया है नहीं आया है बताओ। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है ना, दैट इज नॉट योर फॉल्ट, इट इज माइन। इट इज नॉट योर फॉल्ट, इट इज माइन। मैं बता रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा, यू डिडंट गेट इट, नो वरीज, आई मेक यू एक्सप्लेन वेरी क्विकली। पूजा समझना, प्लीज अंडरस्टैंड, एंड गाइस प्लीज डोंट फील इरिटेटेड, राइट? आज उसका नंबर है, कल आप लोगों का होगा, दैट्स ओके। पूजा समझो, बॉन्ड जब इशू हुआ तब 1000 रुपीज का बॉन्ड था और 8% पे इशू हुआ। मतलब कंपनी ने बोला कि अगले 20 साल तक मैं हर साल आपको 1000 पे 8% का इंटरेस्ट पे करूंगी एट दी 31st ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। आप मेरे पास बॉन्ड लेके आ जाना और मैं आपको इशू कर दूंगी, ठीक है? आप वो बॉन्ड ने, कंपनी को आपने 1000 रुपीज दिया, कंपनी ने आपको 8% का बॉन्ड दिया। मार्केट में आप गए, मार्केट में आप गए, अडानी का बॉन्ड है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा समझो, ठीक है? अब उस बॉन्ड को, और अडानी ने, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया कि अडानी रिस्की कंपनी बन गई, पूजा विल रिवोट। जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो लोगों का परसेप्शन अडानी के लिए सेफ हुआ या रिस्की हो गया? इट्स ऑल परसेप्शन गेम गाइस। रिस्की हो गया। तो क्या आप उस बॉन्ड को 1000 रुपए में खरीदोगे? क्या यू विल बी सेटिस्फाइड विद दिस 8% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट? क्योंकि आप अगर 1000 पे खरीदते हो तो आपको रिटर्न तो 8% ही मिल रहा है ना। यू नीड मोर रिटर्न, यू नीड मोर रिटर्न, राइट? आपको और रिटर्न चाहिए। तो अब रिटर्न आप बढ़ाओगे तो आप कूपन रेट तो बढ़ा ही नहीं सकते, वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है, कंपनी तो 8% ही पे करेगी। एग्रीमेंट हुआ है ना बॉन्ड होल्डर के साथ, ठीक है? तो आप क्या करने की कोशिश करोगे? आप ये 1000 रुपीज को कम करने की कोशिश करोगे। से फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका एक्सपेक्टेशन है, मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द 8% रिटर्न इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अडानी स्टॉक, वी नीड मिनिमम 30% रिटर्न, वी नीड मिनिमम 30% रिटर्न। तो अब उस 30% रिटर्न को, उस 30% रिटर्न को जनरेट करने के लिए क्या आप 1000 रुपीज पे करोगे? नहीं करोगे। आप 1000 पे करोगे तो आपको 8% रिटर्न मिलेगा। यू विल पे अ प्राइस जिसका 8% आपके लिए आज 30% हो जाए। मतलब यू विल पे अ प्राइस विच इज 266, ठीक है? वो 266 पे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस पे जो आपको कूपन रेट मिलता है विच इज 80, इट शुड बी 30% ऑफ योर 266, क्योंकि आपने 266 में बॉन्ड खरीदा है आज मार्केट में, आपका एक्सपेक्टेशन 30% था। मेरे पास बॉन्ड है अडानी का, मैं आपके पास आया, पूजा विल यू बाय दिस बॉन्ड? यू विल से सर आई वोंट बाय इट 1000 रुपीज बिकॉज ए कंपनी ऑन 31st ऑफ दिसंबर एंड दे विल टेल मी कि 8% रिटर्न मिल रहा है आपको, मतलब 8% कूपन, 80 रुपए का आपका कूपन लो। तो सर मेरे को तो आज 8% ही रिटर्न मिला ना, मेरे को चाहिए 30% रिटर्न इसके ऊपर। तो आई वुड से कि ओके, तेरे को 30% रिटर्न चाहिए, मतलब यू नीड कि तेरा जो 80 रुपीज का तेरे को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 80 रुपीज तेरे टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% होना चाहिए, देन ओनली यू आर कमांडिंग 30% रिटर्न, राइट? तो यू से हाँ सर ऐसे ही होना चाहिए, ओके? तो आई वुड से कि ओके चल बैक कैलकुलेशन करते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि 80 रुपीज किस अमाउंट का 30% होता है। तो व्हाट वील डू इज वी डिवाइडेड 80 बाई 30%। तो अपने को निकल के आया कि 80 इज 266 रुपीज का 30% इज 80। तो आई वुड से कि 266 रुपीज में बॉन्ड खरीदोगे? यू विल
डेफिनेटली अग्री, बिकॉज आपका एक्सपेक्टेशन था 30% रिटर्न जनरेट करना, आपने 266 रुपीज में मुझसे बॉन्ड खरीद लिया, राइट? एंड 31 दिसंबर आया, आप बॉन्ड होल्डर आप हो, 31 दिसंबर आया, यू विल बी द बॉन्ड, यू आर द बॉन्ड होल्डर, यू विल गो टू अडानी, अडानी विल गिव यू 80 रुपीज, वाई? बिकॉज कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी है, 8% देना है 1000 रुपए पे, ना कि 266 पे। लेकिन ये जो 1000 पे 8% मिला है ना, ये 266 पे कितना हो गया आपके लिए? 30% हो गया। आई होप ये अब समझ में आ रहा होगा। इतने कम टाइम में मैं इससे अच्छे से नहीं समझा नहीं सकता, मेरे को 1 घंटा लगता है कंसेप्ट समझाने में, ठीक है? मैंने बहुत बहुत स्मूथ करके आपको समझाया है। कैन अ रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट अ बॉन्ड? अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। इंडिया में बॉन्ड मार्केट अभी मेच्योर, अभी स्टेज ही नहीं है बॉन्ड मार्केट का, इट इज नॉट इन द नेसेंट स्टेज। देयर इज एब्सोल्युटली जीरो एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉन्ड मार्केट इन इंडिया एज ऑफ नाउ। आरबीआई ने बीच में शोर शराबा करा था कि अब रिटेलर्स भी बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड यार, इंडिया इज ए इमर्जिंग इकोनॉमी, यहाँ पर पीपल विल ट्राई टू, सो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ दो चीजों के लिए होती है, यहाँ तो आप स्टॉक मार्केट में जाओगे, यहाँ पे एफडी में जाओगे, बीच का कोई रास्ता नहीं लग चलता है इंडिया के अंदर एट एज ऑफ नाउ। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर इंडिया को अगले 2070 तक, अगले 40 साल में, अगले 30-35 ईयर्स में, 40-45 ईयर्स में, if we are targeting, which we are targeting, a $50 trillion economy, it is not possible without the contribution of the bond market. अगर आप ग्लोबली देखोगे ना, तो इक्विटी मार्केट इज दिस मच एज कंपेयर टू बॉन्ड मार्केट, एंड जो सबसे बड़ा शाख है वो है फॉरेक्स मार्केट ग्लोबली। इट्स अ 24/7 मार्केट। व्हाई? बिकॉज कंट्रीज डील इन करेंसीज, कंट्री एक दूसरे के साथ करेंसी में ट्रेड करती, सबसे बड़ा ट्रेड होता है वॉल्यूम वाइज, नंबर वाइज, एवरीथिंग वाइज, राइट? नाउ शुड वी मूव फॉरवर्ड एवरीवन, आगे बढ़े? तो हिंडनबर्ग ने क्या करा? हिंडनबर्ग ने ऊपर बॉन्ड को शॉर्ट किया जब बॉन्ड का यील्ड 4-5% था। जब बॉन्ड का यील्ड बढ़ के 37% हो गया, तो क्या बॉन्ड का प्राइस फॉल हुआ होगा? सोच के बताना। जब बढ़ के 37% हो गया, तो क्या बॉन्ड का प्राइस फॉल हुआ होगा? यस और नो एवरीवन? बिल्कुल हुआ होगा। तो हिंडनबर्ग ने ऊपर सेल किया, नीचे बॉन्ड को बाय कर लिया। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है अगर कोई सिक्योरिटी का कॉल ऑप्शन इंडिया में, मैं बोल रहा हूं ना, इंडिया इज, वी आर लैगिंग व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इंडिया इज ए लैगिंग कंट्री और लैगर व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, राइट? और इनोवेशन इन द फाइनेंशियल प्रोडक्ट। बट यूएस में ऐसा नहीं होता। क्या इंडिया में कोई कंट्री लिस्टेड है, कोई कंपनी लिस्टेड है जो यूएस में नहीं है? क्या स्टिल उसका ऑप्शंस यूएस में ट्रेड हो सकता है? कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? ऑप्शन तो शर्त ही होती है ना, सट्टा होता है ना, कि इन्फोसिस का प्राइस 2400 रुपए हो जाएगा बाय द एंड ऑफ मार्च, राइट? कॉल ऑप्शन ले लिया आपने 2400 का, अगर 2400 के ऊपर क्लोज हुआ तो दिस विल बी द प्राइस ऑफ द प्रीमियम, अगर नीचे क्लोज हुआ तो जीरो हो गया, मैं खा के बैठेगा, ठीक है? तो उसने नॉन इंडिया ट्रेडेड डेरिवेटिव्स को लॉन्ग किया, मतलब उसकी जो पुट ऑप्शन थे, यहाँ एफएनओस थे, एफएनओस को शॉर्टिंग मारी। वो इंडिया में नहीं आया। वाई इंडिया में नहीं आया पता है आपको? क्यों नहीं आया? इंडिया में अगर वो शॉर्ट करता ना इस रिपोर्ट की रिलीज के पहले, तो पता चल जाता सबको। कि इससे पता चलता ऑप्शन चेन करके कंसेप्ट होता है, जहां पर डेली एक्सचेंज एक एनालिसिस देता है कि किस स्टॉक के अंदर कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी कितने लोग इसको शॉर्ट करके आज घर चले गए बिना स्क्वायर करे, कितनी ओपन पोजीशंस है। जब वो पोजीशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होना शुरू हो जाती अडानी ग्रुप में, तो एवरी टॉम डिक एंड हैरी वुड हैव नो कि अडानी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। दैट्स व्हाई दे जस्ट रिमेन्ड आउटसाइड द इंडिया मार्केट एंड दे न्यू दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल द अडानी ग्रुप इज। वो फंड ही बाहर नहीं ले जाने देता अडानी ग्रुप उसको, जो भी पैसा बनाता ना, ये गवर्नमेंट ही उस पर होल्ड लगा देती, एंड इट इज वेरी इजी फॉर देम। सी आई डोंट हैव एनी शेम, राइट? आई नो दैट अडानी इज नॉट अ कॉन, ओके? क्या अडानी हिस्ट्री में सबसे बड़ा कॉन है? नहीं। कॉन वो होता है जो आपका पैसा लूटे और भाग जाए, ठीक है? ही इज कॉन। हैव यू हर्ड अबाउट अ फोन कंपनी कॉल्ड एज फ्रीडम 251? एक कंपनी आई थी स्कीम लेके कि 251 रुपीज में आपको फोन दे देंगे, आप 251 रुपीज आज दो, 6 महीने बाद फोन ले जाना। इतना हल्ला हुआ था कि मोदी जी भी आ गए थे बीच में कि अरे वाह, मोदी जी ऑल्सो प्रेज दैट कंपनी, क्योंकि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जस्ट स्टार्ट ही करा था। ही वॉज अ कॉन, अडानी इज नॉट अ कॉन। क्यों अडानी कॉन नहीं है बताऊं? सी, रिपोर्ट सेंसेशनल बनाई क्योंकि वही तो करना था उसको, फॉल कैसे होता ग्रुप का, ठीक है?
अगर समझो ना, अगर रिपोर्ट का टाइटल होता इज अडानी अ सेंट, राइट, और क्वेश्चन मार्क, तो ये सेंसेशन थोड़ा ना क्रिएट होता। उसने क्या बोला, बिगेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री, अडानी इज पुलिंग द बिगेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री, दैट वाज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। इट इज अवेलेबल विद फुल एनालिसिस ऑन माय लिंक्डइन प्रोफाइल, जस्ट गो एंड मेक सर्च ओवर देयर। अडानी ग्रुप जो है एज ऑफ नाउ, सो ही इज नॉट अ कॉन, दोज हु आर अडानी फैन, please hold your hearts. I'm telling this to you, he's not a con. Okay, so it's not an anti Adani thing, this is not an anti Adani session, right? अपने को सिर्फ लर्निंग उठा के निकलना है यहाँ से, मेरे को जजमेंट पास नहीं करना अडानी कौन है नहीं है। ओके, अडानी के जो बिजनेसेस है ना, वो लेजिट बिजनेस है, वो लेजिट बिजनेस है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, नोबडी कुड डिनाई दैट। क्या इंक्यूबेटर है उनका, एईएल। इंक्यूबेटर क्या होता है पता है? जो प्रोसेस होती है ना, जब मदर चिकन अपने एग्स के ऊपर हैच करता है, जो हैचिंग होती है उसको इंक्यूबेटर बोलते हैं। जब चिकन को, जब एग को टेस्ट करा जाता है कि ये डिलीवरेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो इट विल गो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, राइट। बट उसमें से अगर चिकन निकल सकता है तो उसको एक मशीन में रखा जाता है हैच करने के लिए, उस मशीन को इंक्यूबेटर बोलते हैं, राइट, इंक्यूबेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो अडानी खुद का जो एईएल ग्रुप है, अडानी इंटरप्राइजेस, को इंक्यूबेटर बोलता है। व्हाई? कि हम जो भी बिजनेस नर्चर करेंगे दैट विल बी पार्ट ऑफ एईएल इनिशियली। जैसे अडानी डेटा सेंटर आईपीओ आने वाला है, पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, अडानी डेटा सेंटर का आईपीओ आने वाला था, बीच में न्यूज थी। अडानी रिटेल का आईपीओ आने वाला था, बीच में न्यूज थी। ठीक है, तो अडानी, अभी वो अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड का पार्ट है, बट बाद में हम उसको डीमर्ज करके बाहर कर देंगे एंड वी लिस्ट एज अ सेपरेट कंपनी। ये सारी जितनी भी कंपनीज आप देख रहे हो ना, ये सारी कंपनीज को इनिशियली अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड ने इंक्यूबेट करा एंड बाद में दे हैव डीमर्ज्ड इट टू अनलॉक द वैल्यू। ये काम रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी तक नहीं कर पाई है। क्या आपने देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज का न्यूज है कि रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल का आईपीओ आएगा? रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल का आईपीओ लाने के चक्कर में है वो लोग 2023 में, जस्ट मार्केट कंडीशन इज नॉट इन देयर फेवर एज ऑफ नाउ, और इन द फेवर ऑफ एनी आईपीओ एट दिस मोमेंट, राइट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज इंक्यूबेटर फॉर वेरियस बिजनेसेस ऑफ रिलायंस। एनर्जी के अंदर है, ट्रांसपोर्ट में है, इनटू मिनरल माइनिंग, मेटल, राइट, डायरेक्ट टू कंज्यूमर में है, लाइक थ्रू एडब्ल्यूएल, थ्रू एडीएल, डिजिटल, अडानी डिजिटल। तो ऐसा तो नहीं है यार कि कौन है, ठीक है, दैट इज फॉर श्योर, ही इज नोवेयर नियर टू द वर्ड कौन, क्योंकि उसके बिजनेस में सब्सटेंस है बहुत ज्यादा, इसको आप कौन जॉब तो नहीं बोल सकते। बट क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप के जो शेयर प्राइस हुए हैं, जो शेयर प्राइस का इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ है, दैट कुड हिंट टू अ शेयर प्राइस मैनिपुलेशन, यस और नो? इस पे पूरा सेशन टिका हुआ है आज का। इंटायर सेशन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ if what is being accused by Hindenburg report, अगर वो चीज उसने एक्यूज करा है तो वो कैसे हुआ है, ठीक है। हाउ अडानी इज पुलिंग दिस गेम ऑफ शेयर प्राइस मैनिपुलेशन। डू यू थिंक सो कि ये चीज हुई है? इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ शेयर प्राइस मैनिपुलेशन, एंड आई विल मेक यू बिलीव बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है, थ्रू लॉजिक्स एंड नो बायस। आई डोंट हैव एनी बायस इन अडानी ग्रुप, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू। मेरे पास सिर्फ एक स्टॉक इस समय अडानी ग्रुप का जो मैंने रिसेंटली इंटर किया, अंबुजा सीमेंट, एंड आई विल टेल यू द रीजन आल्सो व्हाई आई एंटर्ड इनटू अंबुजा सीमेंट। मैंने 270 240 से आई हैव स्टार्टेड बाइंग एईएल, अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड। आई हैव बॉट इट टिल 270, आई हैव एग्जिटेड एट 3000 रुपीस, ठीक है। ये जो अडानी फियास्को जब से हुआ है तब से मोर देन 4 अडानी ग्रुप सीईओ वाज एंगेज्ड विद मी ऑन लिंक्डइन। 4 अलग अलग अडानी ग्रुप के सीईओ ने एंगेज किया। दैट वाज नॉट एन आइडिया यार, दैट वाज नॉट एन आइडिया। आई हैव जस्ट पोस्टेड व्हाट आई हैव थॉट, ठीक है, इट जस्ट वेंट आउट ऑफ प्रपोर्शन। ओके, सो आई टोल्ड देम दैट आई यूज्ड टू बी एन इन्वेस्टर इन अडानी ग्रुप। 270 रुपीज से मैंने खरीदा था। आई हैव राइड इट टिल 3000 रुपीज, जनरेटेड 12x रिटर्न। आई हैव एग्जिटेड एट 3000 रुपीज, आई हैड जीरो रिग्रेट। इट माइट गो टू 4000 तक गया, इट माइट हैव गॉन टू 10,000 आल्सो, तब भी मेरे को रिग्रेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब प्राइस 3000 पे आया था एंड आई हैव डन सम एनालिसिस, द फाइनेंशियल मैट्रिक्स वर कंप्लीटली आउट ऑफ माय इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। एक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क आपको बनाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, व्हेनेवर यू विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई कांट सजेस्ट एनीथिंग ऑन ट्रेडिंग, but you need to prepare a framework then when you will buy a stock and when you will exit from a stock. जनरली लोग क्या करते हैं ना, बाय का तो फ्रेमवर्क बना के रखते हैं,
कि ये चीजें होंगी, ये स्क्रीनर रन करूंगा, ये चीज देख लूंगा एंड आई विल बाय द स्टॉक, बट दे डोंट हैव एनी फ्रेमवर्क दैट व्हेन दे शुड मेक एन एग्जिट फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टॉक. जैसे ही कोई स्टॉक मेरे फ्रेमवर्क से एग्जिट कर जाता है ना, नो मैटर व्हाट, दुनिया में किसी ने भी उसमें पैसा लगा दिया हो एक दिन पहले, अगर वो मेरे इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क से बाहर हो गया है, तो आई विल सेल दैट स्टॉक विदाउट एनी इमोशन. इफ यू वांट टू सक्सीड इन स्टॉक मार्केट, राइट, if you want to succeed in stock market, you have to act like a robot, like a machine without zero emotion. मेरे को कोई, I don't have any sympathy, any empathy, any grief, right, or any anger towards Adani. I am just an investor. I will look for the safeguard of my own investment first, rather than considering this picture and defending him, because they have, पता नहीं आप लोगों ने चीज फोकस करा कि नहीं करा, बट दे हैव वेरी स्मार्टली स्विफ्ट द इंटायर थ्योरी कि ये दिस इज अटैक ऑन इंडिया. ये फर्स्ट रिस्पांस के अंदर आया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर इसको अटैक ऑन इंडिया बोल देंगे ना, तो हमारे साथ पूरी व्हाट्सएप आर्मी खड़ी हो जाएगी इसको डिफेंड करने के लिए. दैट डिडंट हैपन, राइट, बट अटैक ऑन वन कॉर्पोरेट इज नॉट अटैक ऑन इंडिया. ठीक है, ऑनेस्टली दिस इज नॉट अ कॉर्पोरेट. टाटा पे अटैक होता ना, तो वी कुड हैव कंसीडर इट इज अटैक ऑन इंडिया. दे आर कंट्रीब्यूटिंग for last 180 years for the development of this country day in day out, right? Adani to be starting here, okay, and they have done mischievous activities before. Mumbai में 2002 में इनका एक ship sink हो गया था, पूरा कोल से भरा हुआ था. It has destroyed the marine life, right? पूरा marine life destroy कर दिया था. They have not even bothered to make a statement or do any effort to make it good. उसने सॉरी भी नहीं बोला आके. ठीक है, दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन वी वांट, राइट? दैट इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन दैट कुड टेक इंडिया टू फाइट. मतलब डेफिनेटली दे विल कंट्रीब्यूट, राइट? नो, इट वाज नॉट ऑयल, इट वाज कोल. इट वाज नॉट ऑयल, इट वाज कोल. ऑयल हैपेंड इन 2016. आई वाज इन मुंबई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए. अगर हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But we have the stalwarts, we have the luminaries like Tata, Mr. Tata, House of Tata, House of Godrej, House of Vardias, right? Infosys Group, right? We are proud of them. We are proud of Razorpay. We are proud of Zerodha, right? You might be proud of Adani Group, but I am not. I am not, right? But it's okay. If they are contributing, it's very good, right? But just in case अगर ये scandal निकलता है ना, just in case if it turned out to be a scandal, the entire Adani Group, right? अगर ये स्कैंडल निकलता है, तो आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट, एंड आई हैव रिपीटेड दिस ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, राइट? मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मैंने खुल के लिखा है दैट अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, नॉट द ओपिनियन ऑफ द फोरम, राइट, ऑन विच आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू दिस स्कैम और टू दिस स्कैंडल. अगर ये स्कैंडल होता है तो फ्यूचर में, अगर ये अनर्थ होता है स्कैंडल, व्हाई? बिकॉज यू हैव नॉट डन एनीथिंग. आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट यू आर इन्वॉल्व पैसिवली एट ईच एंड एवरी स्टेज. आपके चार्टर फ्लाइट आप यूज कर रहे हो यार उस बंदे के टू डू योर कैंपेनिंग. कम ऑन, राइट? हाउ यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट हिम? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? यू कांट बी बायस्ड, यू कांट बी अनबायस्ड. अभी तक भी जीरो रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट की तरफ से. गवर्नमेंट मीन्स डेफिनेटली द प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट कम इन फ्रंट, एंड दैट इज बिलो द डिग्निटी ऑफ अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर. इवन आई वुड नॉट लाइक दैट कि मेरा प्राइम मिनिस्टर आए और किसी एक कॉर्पोरेट ग्रुप को डिफेंड करे. ये यूएस थोड़ी ना है. ये यूएस नहीं है ना, जहां का प्राइम मिनिस्टर, जहां का प्रेसिडेंट अमेजॉन के बारे में बात करता है, इंटेल के बारे में बात करता है, आईबीएम के बारे में बात करता है. प्रेस करो लेकिन डिफेंड नहीं होता. एंड इट इज सीरियसली बिलो आर डिग्निटी ऑफ आर प्राइम मिनिस्टर, right? He's our leader, come on, okay? Now please understand, ठीक है? क्या प्राइस मैनिपुलेशन हुआ है, इसको समझते हैं अपन पूरे स्टेज बाय स्टेज में कि कैसे हुआ है. आप पहले कंसेप्ट समझो. नंबर 1, एक्सट्रीमली लो फ्री फ्लोट. फ्री फ्लोट क्या होता है पता है? फ्री फ्लोट होता है कि मार्केट में कितना शेयर घूम रहा है. सेबी ने 2 साल पहले एक सीलिंग लिमिट लगाया था, जस्ट बिफोर कोविड इट हैपेंड, कि 75% से ज्यादा स्टेक प्रमोटर नहीं रख सकता. 2 मेजर रीजन है उसके. नंबर 1, दैट बिकॉज आपका बोर्ड में सबसे ज्यादा सीट होगा एंड द स्मॉल शेयर होल्डर्स वोंट बी एबल टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट. दैट इज नंबर 1. नंबर 2 एंड द मेन एंड द प्राइमरी रीजन फॉर promoter holding ceiling is
दैट यू कुड इजीली मैनिपुलेट द प्राइस अगर आपके पास 90-95% स्टेक है आपकी कंपनी का। तो जो 2% वाला है बेचारा वो क्या ही कर लेगा। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक कि अडानी ग्रुप का शेयर होल्डिंग कैसा दिखता है। ग्रुप का शेयर होल्डिंग है, किसी कंपनी का नहीं है, एवरेज शेयर होल्डिंग है। तो अडानी ग्रुप में 72.5% शेयर जो है वो अडानी के पास है। अडानी के या तो फैमिली ट्रस्ट के पास है, या अडानी की सॉरी या तो अडानी के फैमिली ट्रस्ट के पास है, इधर इट इज विद द फैमिली ट्रस्ट ऑफ द अडानी, अडानी ग्रुप के पास है, गौतम अडानी के पास है, उनके ब्रदर्स के पास है, विनोद अडानी एंड द अदर अडानी, बेबी अडानी। 15% इस पे थोड़ा फोकस करना, आगे पूरा बात इसी पे ही है। 15.3% इज विद फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, वी कॉल देम एफआईआईस, उनको एफआईआईस बोलता है। 1% with Indian mutual funds, we call them DIIs, domestic institutional investors. 4.5% approximate with LIC, 2% with retail. इस पे भी फोकस करना, इसके बारे में बात करेंगे। I don't want to talk about LIC. ठीक है, it's not an investment company, they are pathetic in their making their investment. And 4.72 इसके बारे में भी बात करेंगे। एक एक करके समझते हैं क्या होता है। क्या इस समय आप देख के बताओ, क्या कोई लॉ ब्रेक हो रहा है? ये टेबल देख के क्या प्रमोटर सीलिंग ब्रेक हो रही है? यस और नो एवरीवन? क्या प्रमोटर सीलिंग ब्रेक हो रही है? एब्सोल्युटली नॉट। कैसे हो रही है? 72% स्टेक है ना, 75% से ऊपर होगा तो ब्रेक होगा ना। अगर अडानी ग्रुप का होल्डिंग विल इंक्रीज अबव 75%, देन अभी तक कोई भी क्राइम हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, बट डू यू रियली थिंक दैट ही होल्ड ओनली 75%? आपको ऐसा लगता है कि उसने सिर्फ 75% स्टेक ही लिया हुआ है अपनी कंपनी में? सोच के बताइए एवरीवन। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है भाई, क्राइम तो हुआ ही नहीं है शुरू से आखिरी तक अडानी ग्रुप की तरफ से। मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा अभी। क्राइम तो करा ही नहीं, दे जस्ट यूज द लूप होल ऑफ द लॉ वेरी इजीली। पूरा कैसा पैसा घूमता है, कैसा कैश ट्रिपिंग हो रही है, वो पूरा हम देखेंगे। ठीक है, एंड तक टिके रहना। प्रॉब्लम बताऊं कहां पर आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ये जो है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, यहां से पूरा पिक्चर घुमा है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड कैसे घुमा है। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं, दे आर एएमपीएस फंड, क्रेस्टा, एलटीएस, इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी, ओपल इन्वेस्टमेंट। इन्होंने कितना कितना असेट है इनके पास? टोटल असेट साइज की बात कर रहे हैं अपन, $2.3 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपया। $674 million, $1.5 बिलियन, अगेन 10,000 करोड़ रुपया। $3 बिलियन, 24,000 करोड़ रुपीज, एंड अगेन $613 million, which is close to 8 6 48, मतलब 50,000 करोड़ रुपीज, राइट, समथिंग लाइक दैट। 5,000 करोड़ रुपीज। बट इनका इन्वेस्टमेंट, इनके टोटल असेट में से एएमपीएस का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में। ठीक है, ओपल का पूरा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में, इनका भी पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में, और इसका भी पूरा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में। अब आप एक कंसेप्ट और समझना, क्या जब मैंने आपको बॉन्ड यील्ड के बारे में समझाया था तब आपको एक्सपेक्टेशन समझ में आया था डिबेंचर का? तब क्या आपको एक्सपेक्टेशन समझ में आया था डिबेंचर का, कि एक्सपेक्टेशन कैसा होता है? समझ में आया था? अब समझना प्लीज, एंड आई नीड you to explain this before you understand or before even we proceed. प्लीज समझना। जैसा हमने देखा, एक कंपनी ने एक कंपनी ने एक डिबेंचर सॉरी एक कंपनी ने एक डिबेंचर इशू किया है। उस डिबेंचर पे 9% इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है। तो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा उस डिबेंचर को इशू करने का? कंपनी को कितना पैसा आउटफ्लो करना है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा कंपनी के लिए? सोच के एवरीवन, क्या कर रहे हो? सो रहे हो क्या यार? कम ऑन, इतना लाइवली सेशन चल रहा है। अज्यूम नो टैक्स एनवायरमेंट, कोई टैक्स नहीं है। ठीक है गाइस, बोर हो रहा है क्या? आगे बढ़े? इट्स एब्सोल्युटली फाइन, टोटली अप टू यू। ठीक है, यप, परफेक्ट। 9% है ना ये,
ये जो कॉस्ट है ना, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट है मतलब इट इज मेंशन्ड ऑन द फेस ऑफ द डिबेंचर कि मैं 9% से पे करूंगा आपको, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ डेट जो हो गया वो 9% हो गया। प्रॉब्लम कहाँ आता है पता है? प्रॉब्लम आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, कि जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जब किसी को इक्विटी देता हूं मार्केट में, जब मैं इक्विटी रेस कर रहा हूं, इक्विटी इशू करके फंड रेस कर रहा हूं, तब उस इक्विटी इशू करके फंड रेस करने में मेरा कॉस्ट क्या होगा, कंपनी की तरफ से कैलकुलेट करना है। तो कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, समझना, मान लो आपको कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट मिले, आप 25 साल पुराने इन्वेस्टर हो, क्या उस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि कंपनी आपको कितना % डिविडेंड देगी हर साल? सोच के बताओ, क्या इंडिया में डिविडेंड इन्वेस्टिंग होती है क्या प्रिडोमिनेंटली? क्या कोई इंडिया जैसे फ्लक्चुएटिंग और इमर्जिंग मार्केट में सिर्फ डिविडेंड के लिए पैसा लगाता है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, तो आपके एक्सपेक्टेशन क्या फिक्स है? नहीं है। तो इसको क्या बोलोगे आप पता है? दिस इज इम्प्लिसिट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होती है ना, वो इम्प्लिसिट होती है, वो पता नहीं होती, वो दिखती नहीं है, नहीं दिखेगी। डिवेंचर पे तो दिख रहा था ना मेरे को, समझ में आ रहा था कि हाँ 9% देना है, इधर मेरे को दिखता नहीं है। तो यहाँ कंपनी कैसे आइडेंटिफाई, क्या कंपनी डिसाइड करेगी या शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे? सोच के बताओ। एक्सपेक्टेशन कौन डिसाइड करेगा, कितना रिटर्न चाहिए मेरे को इस स्टॉक से? वो शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे या कंपनी डिसाइड करेगी? इन्वेस्टर्स डिसाइड करेंगे या कंपनी डिसाइड, इन्वेस्टर डिसाइड करेंगे? अब समझना, इसका एक तरीका है कि मैं हर शेयर होल्डर के पास जाऊं और पूछूं कि रिया व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, ओके गगन व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। ऐसा मैं नहीं कर सकता। अगर ऐसा करूंगा तो रिलायंस के तो 10 लाख यूनिक शेयर होल्डर्स हैं, क्या मैं 10 लाख लोगों के पास जाके पूछूंगा एक्सपेक्टेशन? एक नंबर 1 वॉल्यूम का इशू आ जाता है। ठीक है, दूसरा इशू क्या आता है पता है? दूसरा इशू, मान लो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मीत है, ठीक है, मीत ने अपने पापा से पूरा 1 लाख रुपया लिया और बोला पापा 1 लाख रुपए ले रहा हूं अंबानी पे इन्वेस्ट करने के लिए। मीत ने पूरा का पूरा 1 लाख रुपया रिलायंस इंडस्ट्रीज में फंसा दिया। मीत को कितना रिटर्न चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से? अगर मुकेश भाई मीत के पास आए कि मीत भाई कितना रिटर्न चाहिए आपको, कितने रिटर्न की गरज है, मीत बोलेगा सर डबल करके दो ना, कोशिश करो ना डबल हो जाए। बोलेगा कि नहीं बोलेगा मीत? योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन विल बी extraordinarily high because you are assuming full risk, you are all into Reliance Industries। तेरे पास क्या नहीं है, तू किस, तो वो जो रिटर्न मांग रहा है ना, वो रिटर्न रीजनेबल नहीं है। बताओ क्यों रिटर्न रीजनेबल नहीं है? बिकॉज ही इज डिमांडिंग द एडिशनल रिटर्न। वो 100% जो अज्यूम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है बताओ? बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ नॉन डाइवर्सिफिकेशन ही इज टेकिंग, यस और नो। क्योंकि पूरा का पूरा इन है तू उस स्टॉक के अंदर। अगर मान ले 1 लाख रुपया तेरे पास होता और तू 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता सारे स्टॉक्स में, बहुत सारे स्टॉक्स में, और अंबानी तेरे पास आता, तो क्या तू बोलता अंबानी को कि सर डबल करके दे दो रिटर्न को? नहीं, तब नहीं बोलता तू। तू डबल भी कर देगा तो क्या ही हो जाएगा, 1,000 का 2,000 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? तू बोलता है कि सर आप तो 25% रिटर्न कमा के दे दो, मेरे लिए बहुत है। क्यों? बिकॉज उस टाइम पर यू आर डाइवर्सिफाइड, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन कि यार ये मेरा पूरा 1 लाख का पोर्टफोलियो जो 100 कंपनीज का है, इसमें कैसे भी करके मेरे को 25% का रिटर्न मिल जाए, दैट्स इट, राइट? दैट्स इट। नाउ नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, क्या इंडिया में अगर मीत बैठा है और इंडिया में मीत 1,000 रुपया हर कंपनी में इन्वेस्ट करा है, 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया और 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया मीत ने, तो क्या मीत फुल्ली डाइवर्सिफाइड है? सोच के बताना, हाँ कि ना, है कि नहीं है कि नहीं है? नो, ही इज नॉट, एब्सोल्युटली राइट, ही इज नॉट। अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि इंडिया पे आज न्यूक्लियर अटैक हो जाता है चाइना से, आज रात को हम सो रहे और दिल्ली में न्यूक्लियर मिसाइल मार दी चाइना ने, ठीक है, या भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन इंडिया का लीडरशिप रातों रात खत्म हो जाता है और प्राइम मिनिस्टर डाइड फॉर एग्जाम्पल, राइट? ऐसा हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं फिर बता रहा हूं, क्या इंडिया विल बी लीडरलेस? क्या कल मार्केट गैप अप ओपन होगा? क्या लग रहा है आप लोगों को, अगर ये दो कंडीशन में से कोई भी एक हो जाती है तो? व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन इन द मार्केट्स टुमारो? क्रैश। खुलते से लोअर सर्किट मारेगा मार्केट 20% पे, 1 घंटे बाद ट्रेडिंग शुरू होगी, फिर 20% डाउन होगा,
फिर 3 घंटे 5 घंटे बाद शुरू होगी, फिर 20% डाउन होगा और उस दिन के लिए ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी। बाय द टाइम मार्केट सस्पेंडेड, मार्केट ऑलरेडी 70% क्रैश कर चुका होगा। अब बताओ, अब बताओ, क्या मीट डाइवर्सिफाइड था? नहीं था। मीट इज नॉट डाइवर्सिफाइड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। तो यहां पर पिक्चर में कौन आते पता है? यहां पर पिक्चर में आते हैं कि वी विल नॉट गो टुवर्ड्स मीट और वी विल नॉट गो टू मीट टू आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर। हम जाएंगे मार्जिनल इन्वेस्टर्स के पास। मैं जाऊंगा मार्जिनल इन्वेस्टर्स के पास। क्यों? मार्जिनल इन्वेस्टर, पहले मार्जिनल इन्वेस्टर की डेफिनेशन समझो। 2 पॉइंट होना चाहिए मार्जिनल इन्वेस्टर के में क्वालिफाई करने के लिए। नंबर 1, एडिक्वेट नंबर ऑफ शेयर्स। उसके पास इतना शेयर होना चाहिए कि अगर वो मार्केट में स्टॉक लेके बैठ जाए, उसकी पूरी पोजीशन लेके अगर वो मार्केट में उतर जाए तो प्राइस को शेक करके रख दे, इन्फ्लुएंस द प्राइस। नंबर 1, एंड नॉट और, एंड विलिंगनेस टू ट्रेड। उसकी विलिंगनेस भी होना चाहिए ट्रेड करने की। क्या मुकेश भाई के पास रिलायंस के इतने शेयर हैं कि वो जिस दिन मार्केट में उतार दें उस दिन प्राइस हिला देंगे पूरा? अरे वो 1% भी अपनी होल्डिंग का उतार देंगे तो प्राइस हिल जाएगा। बट डज ही हैज दिस विलिंगनेस टू ट्रेड? क्या प्रमोटर जो होता है उसकी विलिंगनेस होती है ट्रेड करने की, कि आज खरीदा कल बेचा, परसों खरीदा नरसों बेचा? नहीं ना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट? इफ अ प्रमोटर हैज टू ऑफलोड हिज शेयर्स, परमिशन लेनी पड़ती है 50 जगहों से, एक्सचेंज से अप्रूवल आता है, सेबी से अप्रूवल आता है, अगर बैंकिंग इंडस्ट्री तो आरबीआई से अप्रूवल आता है, इंश्योरेंस है तो इरडा से अप्रूवल आता है, राइट? राइट नाउ वैल्यू इन्वेस्टर लाइक वॉरेन बफेट सर, क्या उनके पास कोको कोला के एडिक्वेट नंबर ऑफ शेयर्स हैं कि अगर वो जिस दिन मार्केट में डंप करेंगे कोको कोला खत्म हो जाएगी कंपनी? है कि नहीं है? नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, है, ठीक है, है, ही इज अ वेरी लार्ज शेयर। बट डज ही हैज विलिंगनेस टू ट्रेड? ये तो बता सकते हो, क्या उनकी ट्रेड करने की विलिंगनेस है? ही इज हैचिंग द शेयर्स ऑफ स्टॉक ऑफ कोको कोला फॉर लास्ट 70 years। वो बंदे ने बेचा नहीं ₹1 का भी स्टॉक आज तक, पिछले 70 सालों में, राइट? तो प्रमोटर बाहर हो गया, वैल्यू इन्वेस्टर बाहर हो गया। क्या डीआईआई जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या वो मार्जिनल इन्वेस्टर हो सकते हैं? आपको लगता है डाइवर्सिफाइड है वो भी मीत ही तो है। मीत का जो मैंने सेकंड केस बताया था वो भी मीत ही तो है। क्या इंडिया को कल को अगर मान लो न्यूक्लियर वॉर होता है, अटैक हो जाता है इंडिया पे, तो क्या म्यूचुअल फंड सेफ रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो वो भी प्रीमियम मांगेगा अगर मैं उसके पास जाता हूं तो, कि नहीं, वो बोलेगा भाई कल को इंडिया में कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा वैसा और बढ़ा के दे दो, ठीक है, मैं आपकी कंपनी पे नहीं खेल रहा हूँ लेकिन इंडिया पे तो खेल रहा हूँ, ठीक है। तो कौन बचता है? जो मार्जिनल इन्वेस्टर नहीं होता, जो मार्जिनल इन्वेस्टर होता है एफआईआईज होते हैं। एफआईआईज होते हैं, कोई फंड हाउस है, एफआईआई फंड हाउस है, केकेआर लिमिटेड, राइट, और सॉफ्ट बैंक, ठीक है। दे हैव इन्वेस्टेड इन इंडिया, दे हैव इन्वेस्टेड इन एशिया, दे हैव इन्वेस्टेड इन साउथ ईस्ट एशिया, within they've invested in US, they've invested in Africa, they've invested in Mexico, they've invested in Brazil, ठीक है, they've invested in Japan, they've invested in Australia, New Zealand. Within those they are invested in multiple sectors. Do you think so that they qualify to be definition of diversified investor? उनका expectation बिल्कुल pure होगा क्योंकि उनको diversification risk के लिए they don't ask for any premium। तो मैं हमेशा उनके पास जाता हूँ, ये मार्जिनल इन्वेस्टर का काम होता है। आई होप ये समझ में आया होगा कंसेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ एफआईआईज मार्जिनल इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या लिखी है, डाइवर्सिफाइड रियली वेल। आप देख के बताना इसके अंदर क्या पॉइंट मिसिंग लग रहा है आप लोगों को। ये एफआईआईज है जिन्होंने इन्वेस्ट किया अडानी ग्रुप के अंदर, क्या एक पॉइंट है जो मिसिंग है इसके अंदर, जो इनको एफआईआई की डेफिनेशन से बाहर कर देगा आइडियली? दैट इज नॉट हाउ एफआईआई रिएक्ट और एफआईआई एक्ट, right? That is diversification. I hope this you are getting my point, right? Diversification है भाई। Yes or no? No, absolutely not diversified। पूरा का पूरा ऑल इन होके बैठा है ये तो मीट का फर्स्ट वाला कंडीशन हो गया, रिलायंस में ऑल इन, ठीक है। दिस इज नॉट हाउ अ मार्जिनल इन्वेस्टर बिहेव। हाउ दे बिहेव? दे आर वेरी वेल डाइवर्सिफाइड, दे रेज द कैपिटल फ्रॉम एचएनआईज। आप समझ लो एक एफआईआई जो होता है या एक बड़ा फंड हाउस है, हेज फंड हाउस है, वो एचएनआईज का म्यूचुअल फंड है, बिल्कुल वैसा समझ लेना, ठीक है। और दे शेयर देयर हिस्ट्री, देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस ईदर ऑन पब्लिक और व्हेन आस्क्ड फॉर। तो अगर आपके पास इतना बड़ा टिकट साइज है कि आप सॉफ्ट बैंक में जाके इन्वेस्ट कर दो एज एन एचएनआई,
if you will ask them that I need to understand, I need to know your prospectus of this particular fund, which fund, SoftBank Vision Fund, they will give you that 1,000-page document. But the ticket size is like $50 million you need to invest minimum. मैं वही बोला HNIs का म्यूचुअल फंड है. बट अडानी ग्रुप में जिन मॉरिशस बेस्ड HNIs और FIIs ने इन्वेस्ट किया, उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी बताओ? दे डोंट हैव मीनिंगफुल वेबसाइट. उनकी वेबसाइट ही नहीं है. जो 5 के 5, 6 की 6 कंपनीज है ना, उन सब ने कॉपी पेस्ट कर रखा है वेबसाइट में. अबाउट अस का कॉलम जाके देखना, सब में कॉपी पेस्ट है. स्क्रीनशॉट्स लगाए हिंडनबर्ग ने चमका चमका के उसमें. दे डोंट हैव मीडिया प्रेजेंस. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप FII और आपको कभी मीडिया ने कवरेज नहीं दिया है. एंड डेफिनेटली देयर इज एब्सोल्युटली नो डाइवर्सिफिकेशन व्हिच इज बीइंग प्रूव्ड. और इस पे सोने पे सुहागा बताऊं, इन सबका जो टॉप मैनेजमेंट है ना, they are at one point of time in history, either they are accused in very big fraud or scandals, or they were somehow related with Adani Group. ये फैक्ट है, ये पब्लिक में अवेलेबल डेटा है. हिंडनबर्ग ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो पब्लिक में अवेलेबल नहीं है. कहां से मिलेगा और कौन मुंह खोलेगा भाई? ठीक है, एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन द पब्लिक, दे हैव जस्ट कंसाइज्ड इट एंड उन्होंने थ्रो कर दिया आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने पैदा. तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर बनी हुई है. मार्जिनल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं. तो अब जरा मुझे सोच के बताओ, क्या अडानी ग्रुप के पास या अडानी जी के पास 75% स्टेक है अपनी कंपनी का, या 90% स्टेक है? बताया था ना, ये अपनी बात हुई थी ना, 75 and 90, राइट? 90% स्टेक है. क्यों? 75 तो ओनरशिप है, और 15 पे क्या कंट्रोल है, हाँ कि ना? ये तो तोता है ना, जो बुलवाओगे वो बोलेगा. ठीक है, जो बुलवाओगे वो बोलेगा. यस और नो. जो FIIs की होल्डिंग है अडानी ग्रुप में, क्या वो एक पर्सन विद द सेम माइंड जो $2 बिलियन इन्वेस्ट करता है, क्या वो 2 बिलियन? यार आप बात क्या कर रहे हो? आपके पास 50,000 रुपए होते हैं, आप एक स्टॉक के अंदर पैसा नहीं डालते हो, आप पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में रहते हो. आप बोल रहे हो कि वो $2 बिलियन, 50, 10 बिलियन, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और 99% पैसा एक ही ग्रुप में लगा दिया है. He controlled this 15% as well. So total stake is 90%. Total control is 90%. Directly और indirectly. ये evident है. अंधा भी देखेगा ढंग से तो बता देगा कि प्रॉब्लम हो रही है. अगर आप इतने भ्रमित हो, मतलब इतना इल्यूजन है आपके दिमाग में कि अडानी सब कुछ है, तो pardon me, you're wrong. You're sitting in a wrong session. Don't be here. This is not your place to be. Go enjoy with your family. Have dinner. Right? ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप यू आर गेटिंग इट. एवरीवन बढ़े क्या आगे? जल्दी बताओ भाई. आई नीड ओके फ्रॉम एवरीवन. चलो चलो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. एक और पॉइंट ऑफ कंसर्न है. इतना अच्छा ग्रुप है, सब कुछ अगर इतना अच्छा है, तो इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने पैसा क्यों नहीं लगाया है? जो ITC जैसे स्टॉक में 7%, 8% का पोर्टफोलियो लगा के बैठते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस. इवन जो इंडिया के बहुत एग्रेसिव फंड्स हैं, जैसे क्वांट्स म्यूचुअल फंड, सिर्फ क्वांट ने थोड़ा बहुत पैसा लगाया है. उसके अलावा जो दूसरे एग्रेसिव फंड्स हैं, उन्होंने अडानी ग्रुप में पैसा. अडानी ग्रुप का म्यूचुअल फंड स्टेक कितना है टोटल एवरेज? कितना परसेंट स्टेक है अडानी ग्रुप में म्यूचुअल फंड्स का? ओनली 1% स्टेक. डोंट यू थिंक दिस इज वेरी ऑड? कोई कंपनी है जिसको आप प्रेज्यूम कर रहे हो दैट इट विल बी द लीडर, इट विल बी द फ्लैग बेयरर ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें इंडियन म्यूचुअल फंड हाउसेस पैसा नहीं लगाएंगे? डू यू थिंक और डू यू बिलीव कि दे हैव मोर इंफॉर्मेशन देन अस? यस और नो. दो फंड मैनेजर्स जो बैठे होते हैं, उनके पास आपसे, भाई मार्केट में वेल्थ कैसे बनती है? मार्केट में वेल्थ क्या सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल आर्बिट्राज से ही बनती है? और कोई तरीका नहीं मार्केट में पैसा बनाने का लॉन्ग टर्म में. आपके पास दूसरों से ज्यादा एज
सुना, वॉरेन बफेट क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रीड 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 इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर इन्वेस्टर, बिकॉज द मोर यू रीड द बेटर इंफॉर्मेशन, द मोर इंफॉर्मेशन यू हैव एंड यू कैन प्ले द इंफॉर्मेशनल आर्बिट्राज। जिसको समझ में नहीं आ रहा आर्बिट्राज का क्या मतलब है, जाके सर्च करना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपके पास दूसरे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो बेचेगा आप खरीद लोगे, आप बेचोगे वो खरीद लेगा, क्योंकि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके पास है, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर सेलिंग एंड ही इज बाइंग, right? Because you don't have that information, you are having it. So you are making money not because of your deed of buying and selling, but because the additional information you have. जब उनके पास ऑलरेडी ज्यादा इंफॉर्मेशन है और ये आप खुद बोल चुके हो, तो उन्होंने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया इसके अंदर? They knew that something was wrong with this particular stock, this particular group. It is not possible कि कोई कंपनी 900 के PE पे ट्रेड कर जाए, no matter how green or how blue or how black it is. It is not justified, period. 900 के पी रेशियो पे कंपनी ट्रेड नहीं करती, बिजनेसेस ट्रेड नहीं करते हैं। डॉट कॉम बबल के टाइम पर 1999 में याहू वाज ट्रेडिंग एट 1900 का पी रेशियो, 1900, दैट वाज द फ्रेंजीनेस, राइट? इट्स ऑल एयर, नो सब्सटेंस एट ऑल। और अडानी पावर में तो 0% स्टेक है। क्या इंडिया में कोई पावर थीम के फंड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के म्यूचुअल फंड्स नहीं है कि नहीं है? सोच के बताओ। अरे है कि निप्पॉन इंडिया फंड है अगर, तो निप्पॉन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा ना। देयर आर मेनी, राइट? देयर आर मल्टीपल फंड्स। व्हाई दे हैव नॉट इन्वेस्टेड इन अडानी पावर एट ऑल? अभी तक क्यों नहीं किसी ने इन्वेस्ट किया अडानी पावर के अंदर? ठीक है, देयर हैज टू बी सम रीजन व्हाई आई डिस्करेज एवरीवन टू इन्वेस्ट इन एन आईपीओ, राइट? स्पेशली व्हेन देयर इज ऑफर फॉर सेल। मैं क्यों डिस्करेज करता हूं बताऊं? क्योंकि जिसके पास आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो बेच रहा है, जिसके पास आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है ही इज सेलिंग एंड यू आर बाइंग, यू विल बी एट लॉस ऑल द टाइम। आप 15,000 को 30,000 करने के चक्कर में लगे रहते हो कि लिस्टिंग के दिन ये डबल खुलेगा और मेरे 30,000 हो जाएंगे एंड आई विल गो पार्टिंग और आई विल गिफ्ट दिस टू माय गर्लफ्रेंड। डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। Just wait for some time, let the dust settle and then enter into the stock. Right. Now please understand, बचा क्या? रिटेल इन्वेस्टर। कितना है रिटेल इन्वेस्टर के पास? 2% है। क्या रिटेल इन्वेस्टर कुछ कर सकता है? क्या आपको लगता है रिटेल इन्वेस्टर में ताकत होगी 270 रुपीज के स्टॉक को 4,000 तक लेके जाने में? डू यू थिंक सो? सिर्फ 2% है भाई। हाँ, 4,000 से 1,000 तक रिटेल इन्वेस्टर लेके आया है, दैट इज फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने रिएक्शन दिया, रिस्पॉन्ड नहीं करा सिचुएशन को। आई होप ये समझ रहे होगे आप दोनों का मतलब। दे हैव रिएक्टेड एंड नॉट रिस्पॉन्डेड टू द सिचुएशन। डम, राइट? बिना सोचे समझे बेच भाई, बेच। क्या कर रहा है? पूरा निकाल, पूरा बेच, ठीक है? नींद नहीं आई लोगों को। क्या ये सारे के सारे जो मैंने अभी तक आपको पैरामीटर्स बताए, इससे कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको क्या हिंट मिलती है कि हाँ प्राइस तो मैनिपुलेट हुए हैं, हाँ कि ना? नहीं, कन्विंस होना जरूरी है। द शेयर प्राइसेस आर फॉलिंग ना, कोई खरीदने वाला नहीं है ना, देयर इज लेस पीपल टू बाय ना। दोज हु आर बाइंग, ठीक है, दे आर फुल। और मैं बताऊंगा क्यों, और मैं भी बताऊंगा कि अगर आपके पास अडानी की स्टॉक है तो आपको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, और अगर नहीं एंड यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट तो आपको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है? एट द एंड ऑफ द सेशन, सो प्लीज बी हियर टिल द वेरी एंड, राइट? गाइस, मजा आ रहा है? आगे बढ़े? एक बार थम्स अप कर दो, मेरे को अपनी तारीफ सुनना इतना पसंद है जिसकी कोई हद नहीं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरी तारीफ करता है। तो if Adani holds 90%, then who's selling those 2% people? Those 2% people, you're not getting it, गगन। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिटेलर बेचा है अभी स्टॉक को, ठीक है? रिटेलर ने बेच दिया स्टॉक को। चलो, आई होप आगे बढ़े क्या एवरीवन? गगन, थम्स अप, आगे बढ़े भाई। लोग गिरते ही जा रहे हैं, क्या मालूम क्या नालायक हो। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 लोग भी बैठेंगे तो समझाऊंगा आखिरी तक। अडानी इज नॉट सेलिंग, अडानी कांट सेल ब्रो। अडानी ने अगर बेच दिया ना यहाँ पर स्टॉक, अगर एक क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर निकल के आया कि अडानी ने, प्रमोटर ने स्टॉक बेच दिया है, तो क्या होगा मार्केट में? क्या स्टॉक प्राइस बढ़ जाएंगे? अगर अडानी बेच के बाहर हो गया कंपनी को, या अडानी ने 5% 10% स्टेक डाइल्यूट कर दिया अपना कंपनी के अंदर,
तो क्या होगा आपके हिसाब से? भाई पहले ही फटी पड़ी है कंपनी की और प्रमोटर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, प्रमोटर बेच के भाग रहे हैं ना, पहले ही कूद गया प्रमोटर, तो वुड यू सेल दैट शिप? आप उस शिप में बनने रहना चाहोगे एज ए रिटेलर? एब्सोल्युटली नॉट। वापस 240 पे आएगा अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, अगर अडानी ने बेच दिया। एक नए पैसे का स्टॉक नहीं बेचा, उसने खरीद भी नहीं पाया होगा। मैं बताता हूँ कारण क्या है, ठीक है? इस सब के कारण क्या हुआ? इन सब के कारण स्टॉक प्राइस हो गए रॉकेट, और वैल्यूएशन कहां पहुंच गया? नॉट टू मून, नॉट टू मार्स, नॉट टू जुपिटर, नॉट टू मर्क्यूरी, सीधे प्लूटो पे, सबसे एंड में जाके। आई नो इट्स नॉट नो मोर अ प्लैनेट, बट यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कितना ऊपर चला गया, ठीक है? राइट? यस। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड क्या किया ना मैंने पिछले 12 मंथ्स का अडानी ग्रुप का प्राइस का हाइक ग्रोथ कितना था और सेल्स का ग्रोथ कितना था, और एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 उसका पी रेशो कितना था, मैंने ये चीज कैलकुलेट करी। सब कुछ 31 दिसंबर तक कैलकुलेट किया, ठीक है? हाँ बिल्कुल यही कारण था। ईशान वाज सेइंग कि हाउ दैट्स हाउ अडानीज पर्सनल नेटवर्थ फ्लू आल्सो, राइट? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस, ठीक है? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अडानी इंटरप्राइजेस का जो प्राइस बढ़ा वो 1000% बढ़ा, 1000% बढ़ा, टोटल गैस 625 बढ़ा, ट्रांसमिशन 254 बढ़ा, बट उसके अगेंस्ट में सेल्स देखो, जो पिछले 1 साल में जो सेल का ग्रोथ हुआ है वो क्या हो रहा है, आप समझना। क्या आप लोगों ने कॉमन फिनोमिना नोट किया है मार्केट में कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन स्टॉक बहुत वॉलेटाइल होता है, या तो गिर जाएगा 10%, 5%, 3%, या जंप मार देता है ना? क्योंकि मार्केट क्या करता है बताओ, मार्केट जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना, उसकी इंफॉर्मेशन को प्राइस में डिस्काउंट करने की कोशिश करता है, प्राइस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा मैंने जो वर्ड यूज करा है, प्राइस में डिस्काउंट करता है उस इंफॉर्मेशन को मार्केट, राइट? कंपनी मार्क जनता की एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी 10% की ग्रोथ देगी, कंपनी ने एक्चुअल ग्रोथ 20% की दे दी, क्या होगा मार्केट में? प्राइस गिर जाएगा जैसे रिजल्ट आएगा, है ना? प्राइस विल फॉल इमीडिएटली। 10% की एक्सपेक्टेशन थी, 20% की ग्रोथ दे दी कंपनी ने, तो प्राइस विल फॉल। नो, यस, वेरी गुड। इट विल इंक्रीज, यस। सो रहे हो क्या? इट विल इंक्रीज ना। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में, अगर आप समझना प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपने अडानी इंटरप्राइजेस को 4000 पे खरीदा है या 3000 पे खरीदा है, जो 1 साल पहले 270 पे था, 2 साल पहले 270 पे था, वुड यू थिंक सो दैट यू विल बी सेटिस्फाइड विद 3% ग्रोथ? हाँ कि ना? नॉट एट ऑल। सब्जेक्टिव है। कैसे सब्जेक्टिव है समझाता हूं, समझना। मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्राइस और एक होती है वैल्यू, ठीक है? एक होता है प्राइस और एक होता है वैल्यू। क्या होता है ना, जब ये दोनों डिफर करते हैं ना, तो इनको एक वन पॉइंट ऑफ टाइम इनको कन्वर्ज करना पड़ता है। वो कन्वर्ज करने के लिए या तो प्राइस फॉल होगा और नीचे आके वैल्यू के पास आएगा, या फिर कंपनी में ग्रोथ होगी एक्स्ट्रॉर्डनरी, ठीक है, और वैल्यू धीरे धीरे बढ़ के प्राइस के पास जाएगी, बट ये होगा ही होगा, इट इज इनएविटेबल। हर अच्छा स्टॉक अपने फेयर वैल्यूएशन पे मिलता है, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। क्या मार्च 21 2020 को बहुत सारे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स अपनी फेयर वैल्यूएशन पे थे? हाँ कि ना? मार्च 21 2020 मार्केट, इंडियन मार्केट्स एक्सपीरियंस डबल सर्किट द डे वी अनाउंस्ड लॉकडाउन। यस और नो? दिस हैपेंस वंस इन अ डिकेड। होता ही होता है, होता ही होता है, यू कांट स्टॉप इट। लास्ट टाइम इट हैपेंड 7th of January 2008 when Mr. Ramalingam Raju wrote letters to exchange and SEBI कि मैंने विंडो ड्रेसिंग करी है। होता ही होता है, आपको वेट करना पड़ेगा बस उस टाइम तक। अगर वेट नहीं करना है तो ऐसे स्टॉक ढूंढो जो फेयर वैल्यू पर है। लेकिन अगर आपको टाटा मोटर फेयर वैल्यू पे चाहिए, अगर आपको टाटा एलेक्सी फेयर वैल्यू पे चाहिए, डीमार्ट फेयर वैल्यू पे चाहिए, तो वेट करो। आज का जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से नहीं, उसका वैल्यूएशन करते रहो, करते रहो, करते रहो। या तो वैल्यूएशन बढ़ के प्राइस तक जाएगा या प्राइस गिर के वैल्यूएशन पे आएगा। जब मार्केट इतना परफेक्ट है डिस्काउंटिंग के लिए, समझना, और जब रिटेलर की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है, तो रिटेलर क्या स्टॉक को बाय करता है कि सेल करता है?
आप नहीं करते हो बिकॉज यू आर नॉट इवन इन्वेस्टर। मैं कॉमन रिटेलर की बात नहीं करता हूँ, मैं मेरे जैसे रिटेलर की बात करता हूँ, दोज हु एनालाइज द क्वार्टरली रिजल्ट एवरी क्वार्टर। मैं एनालाइज करता हूँ मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दी थी, जो मैनेजमेंट ने लास्ट कॉल में प्रॉमिस किया था, क्या वो चीजों पे एक्शन होना स्टार्ट हुआ है? ठीक है, दे विल सेल। सो डेफिनेटली कि अडानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक को भी बेचने की कोशिश करी होगी किसी ने, हाँ कि ना? अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जब ग्रोथ पुअर थी, ये कोई ग्रोथ नहीं होती है भाई, एक इसको छोड़ दो आप ट्रांसमिशन को, ठीक है, दिस इज नॉट अ ग्रोथ, this is not the growth which I'm not saying 25% is a bad growth, 3% is also not a bad growth, please understand, I'm not saying that, I'm saying कि जो वैल्यूएशन कमांड कर रहा है ना वो मार्केट में, जो प्राइस कमांड कर रहा है मार्केट में, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगी ग्रोथ लॉन्ग रन में। तो रिटेलर तो डंप कर रहा होगा स्टॉक, बट प्राइस तो बढ़ता जा रहा था, जिसका मतलब क्या हो रहा था, कोई बहुत बड़ा फोर्स था जो स्टॉक को बाय कर रहा था कंटिन्यूअस बेसिस पे। देख समझ कैसे कैसे गेम होता है। भावेश उतरा मार्केट में, भावेश ने बोला यार अडानी इंटरप्राइज जम नहीं रहा है पापा, खाली 3% ग्रोथ दिए कोई मतलब नहीं है, बहुत ऊंचे भाव पे खरीदे, अपन ने 4,000 पे खरीदा, 4100 का भाव है अभी, बेच के निकली जाओ, ठीक है। 4100 पे तूने सेल ऑर्डर लगाया, जैसे ऑर्डर लगाया, मान ली तेरे पास 1000 स्टॉक है, तूने 100 स्टॉक डाले 4100 पे, जैसे ऑर्डर लगाया एग्जीक्यूट, मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या चल रहा होगा? 4100। जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस मतलब जो लास्ट ट्रेड हुआ है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। भावेश को आया लालच, भावेश ने बोला यार काम करता हूँ, अब 4120 पे लगाता हूँ। भावेश ने 4120, क्योंकि भावेश तो सेलर है ना, तो भावेश ऊंचे पे बेचना चाहेगा, नीचे पे बेचना चाहेगा। सोच के बताओ बंबई कर काय कर दोस्तों में एवरीवन, भावेश ऊपर पे बेचेगा कि नीचे पे बेचेगा? भावेश भाई, भावेश सेलर है, भावेश को ऊंचा प्राइस चाहिए। भावेश तो आज 5,000 आ जाए तो आज पूरा बाहर बेच के बाहर हो जाए। भावेश ने 4120 पे ऑर्डर लगाया, 4120 पे तुरंत एग्जीक्यूट हुआ ऑर्डर। रिटेलर बेच रहा है और कोई 4120 पे भी खरीदने तैयार बैठा है, तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या 4120 हो गया? भावेश को और लालच आ गया, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। भावेश ने बोला पप्पा कुछ कुछ तो हो रहा है, अपने पास 800 स्टॉक और हैं, एक काम करते हैं 400 के 400 जो बचे हुए 800 के 400 स्टॉक है उसको 4150 पे लगा देते हैं। भावेश ने 4150 पे लगाया, तुरंत एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर। कोई बायर था जिसने 4150 का रेट डाला और उसने खरीद लिया उस स्टॉक को, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस बढ़ के 41। ऑक्शन है, नॉर्मल नॉर्मल ऑक्शन है, कुछ भी नहीं है, मार्केट स्टॉक मार्केट ऑक्शन ही है, अगर आपने ऑक्शन प्रोसेस समझ ली ना यू विल बी अ गुड ट्रेडर। और आखिरी लॉट भावेश ने 4200 पे लगाया, जो रिमेनिंग 400 था, और वो 4200 पे एग्जीक्यूट हो गया। अब समझना, रिजल्ट वॉज पुअर, retailer was not happy, their expectation has not been met, they have sold the stock, बट मार्केट में जो चार्ट देख रहा होगा 15 मिनट का, उसके सामने क्या परसेप्शन जा रहा होगा कि यार अडानी का रिजल्ट खराब आया उसके बाद भी स्टॉक बढ़ रहे हैं, हाँ कि ना? क्या ऐसा देखा है आप लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स के साथ, रिजल्ट खराब है उसके बाद भी स्टॉक शूट अप हो जाता है? होता है, आई एम नॉट सेइंग हमेशा होता है, बट रेयरली होता है। जो लोग क्लोजली ट्रैक करते हैं मार्केट उनको पता है ये चीज होती है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स के साथ हो जाती है कि एक बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आया और प्राइस शूट अप हो गया है। तो अडानी के केस में यही तो हो रहा था, रिटेलर बेच रहे थे लेकिन एक बहुत बड़ी पावर थी जो स्टॉक खरीदे जा रही थी, जो भाव पे आएगा उस भाव पे उठाओ। क्यों? क्योंकि हराम का पैसा है, बता रहा हूं मैं है ना, वही होता है, क्योंकि बायर तो कम पे खरीदना चाहेगा ना, एक विजिलेंट बायर होगा तो कम पे खरीदना चाहेगा, क्योंकि उसको तो रिटर्न जनरेट करना है ना। आप अगर मार्केट में 4000 का भाव है तो आप 4000 पे थोड़ा ना सौदा डालते हो, आप तो 3900 3950 3980 पर डालते हो कि 20 रुपए नीचे गिर जाए मेरे को मिल जाए स्टॉक, ठीक है? कि आप 4000 के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, यू डोंट डू दैट राइट, यू डोंट डू दैट, यू नेवर डू दैट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी बाइंग फोर्स थी जो स्टॉक, तो बाइंग फोर्स के पास पैसा कहां से आ रहा था? अगला अगला क्वेश्चन यही आना चाहिए अपन सबके दिमाग में कि भाई ये प्राइस जो रॉकेट हो रहे थे, ये स्टॉक जो मैनिपुलेट हो रहे थे, तो इसका मतलब बहुत बड़ी बाइंग फोर्स तो इतनी बड़ी थी कि वो सेलर को ओवर पावर करके बैठी थी पूरे साल तक। तो पैसा कौन लगा रहा था? वो पैसा कहां से आ रहा था? वो पैसा ये लोग लगा रहे थे, वो पैसा ये लोग लगा रहे थे, वो पैसा ये लोग कैसे लगा रहे थे वो समझते हैं, ठीक है? प्लीज कंप्लीट अटेंशन देना मेरे को, इधर पूरी अटेंशन चाहिए आप लोगों की, ये समझ गए ना मजा आ जाएगा आपको। दिस इज, आई वुड से दिस इज द गोल्डन स्लाइड ऑफ द इंटायर सेशन।
कि अडानी ग्रुप राउंड ट्रिपिंग कैसे करता है, ठीक है, एटलीस्ट दैट इज व्हाट बीन अक्यूज्ड बाय हिंडनबर्ग, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। विनोद अडानी, विनोद अडानी ने क्या करा है, विनोद अडानी ने इंडिया के बाहर जाके कुछ कंपनीज खोली हैं। अडानी मॉरिशस लिमिटेड, अडानी होल्डिंग्स मॉरिशस लिमिटेड, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अडानी परचेज लिमिटेड मॉरिशस में खोली है। क्या यहां पर कोई क्राइम हो रहा है? क्या इंडियन कंपनीज इंडिया के बाहर अपनी सब्सिडरी खोल सकती हैं, हाँ कि ना? क्या कोई क्राइम हो रहा है? बिल्कुल ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आएगा, बस आप अपनी अंगूठे कीबोर्ड पे रखो, ठीक है, मैं बार बार पूछूंगा, क्या यहां पर कोई क्राइम हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, नॉर्मल चीज है यार, सब लोग खोलते, टाटा ने भी खोली, इन्फोसिस ने भी खोली है, सिंगापुर में कंपनी, इधर कंपनी उधर कंपनी, कोई क्राइम नहीं हो रहा है, ठीक है। ये पूरे ग्रुप में 3 लोग इन्वॉल्व है, 4 लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। पूरा जो इसको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बोलो, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है क्योंकि लीगल है, अभी मैं बताऊंगा कैसे लीगल हो रहा है काम पूरा, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही हो रहा है और ऐसे ही कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। 4 लोग इन्वॉल्व है। एक अडानी की प्राइवेट कंपनियां, जो अडानी ने अपनी कंपनियां बाहर खोल रखी हैं, एक वो FIIs जिनके बारे में अपन ने बात करी थी, 5 FIIs, और एक है OEM। OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे जैसे एस्कॉट और जैसे JCB। समझ आया? ये समझ में आया OEM क्या होता है? OEM होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। एस्कॉट, अच्छा अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप को क्या लगता होगा, आपको क्या चाहिए होगा ज्यादा, मटेरियल चाहिए या मशीनरी चाहिए? एज अ ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, क्या लगता है आपको, कपड़ा बनाने के लिए क्या धागा चाहिए उसको? अरे मटेरियल कैसे चाहिए अपना, अरे मटेरियल कैसे चाहिए बाबू? अरे इंपोर्ट क्या करेगा, मशीनरी करेगा ना, कि मटेरियल इंपोर्ट करेगा? सोच के बताओ, मेजर इन्वेस्टमेंट जहां बड़ा पैसा भेजना है इंडिया के बाहर, क्योंकि पैसा जब तक इंडिया के बाहर जाएगा नहीं तो आएगा कैसे? FIIs के थ्रू। तो बड़ा पैसा मटेरियल के थ्रू भेजेगा या मशीनरी खरीदने के बहाने भेजेगा? मशीनरी खरीदने के बहाने भेजेगा। मशीनरी कौन बेच रहा है, कौन बना रहा है? एस्कॉर्ट बना रहा है, JCB बना रहा है, नाम सुना है, ठीक है, नाम सुनना है। ये इनको OEM बोला जाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अभी तक मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, अभी तक सिर्फ आपको ये बताया कि विनोद अडानी जी, जो अडानी जी के बड़े भाई हैं, गौतम अडानी जी के, उनका, उनके नाम से उनकी डायरेक्टरशिप में कुछ कंपनीज हैं जो इंडिया के बाहर चल रही हैं, विच इज वेरी नॉर्मल। और इनका थोड़ा कनेक्शन वो FIIs के साथ भी है, ये भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज देखना अब क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस समझना। अडानी ग्रुप को अडानी ग्रुप को एक बहुत बड़ा हाईवे बनाना है, ठीक है, बहुत बड़ा कोई पोर्ट बनाना है, उसके लिए उसको चाहिए 1,000 करोड़ रुपए की मशीन। अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उसको एक मशीन चाहिए, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी मशीन चाहिए। उसने क्या करा पता है? वो डायरेक्टली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं गया, वो कंपनी के पास नहीं गया जो मशीन बनाती है, वो अपनी कंपनी के पास गया जो मॉरिशस में लिस्टेड है, ये कंपनी के पास गया अडानी, और उसको बोला तुम मेरे को कोटेशन दो, मेरे को पोर्ट बनाना है, कितना खर्चा आएगा? कोटेशन आया 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए का कोटेशन आया, नंबर 1। इधर से आए इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस, ठीक है, कंपनी ने, अडानी मॉरिशस लिमिटेड ने अडानी इंडिया ग्रुप को 1,000 करोड़ रुपए का एक इनवॉइस भेजा, परफॉर्मा इनवॉइस भेजा, यहां से ओके हो गया, और पेमेंट इंडिया के बाहर चले गया, समझना, सेकेंड 1,000 करोड़। क्या यहां पर कोई क्राइम हुआ? क्या गवर्नमेंट का इसमें कुछ से है? भाई मैं प्राइवेट कंपनी हूं, मैं इस बॉटल को 100 रुपए में खरीदूं, 200 में खरीदूं, 500 में खरीदूं, 10,000 में खरीदूं, तू कौन बोलने वाला? मेरा रिटेल इन्वेस्टर बोलेगा, रिटेल इन्वेस्टर तो 2% लेके बैठा है, वो क्या ही बोल देगा? उसको तो चमका के रखा है ना कि भाई प्राइस रोज बढ़ रहा है, तू प्राइस से मतलब रख, ठीक है। हाउ अडानी कैन बाय फ्रॉम अडानी सब्सिडरी? क्या अडानी अडानी की सब्सिडरी से नहीं खरीद सकता है? सोच के बताइए। अरे टाटा मोटर्स को जो स्टील चाहिए होता है कार बनाने के लिए, तो क्या JSW पे जाके खरीदेगा
या टाटा स्टील से खरीदेगा? सोच के बता भाई अमन। टाटा स्टील के एम्प्लॉयज जो चाय पियेंगे तो क्या गुडरिक की चाय पियेंगे या टाटा की चाय पियेंगे? क्यों नहीं खरीदेगा? क्या क्राइम है? और सिंस इट्स अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, और है तो पब्लिक चिल्लाएगी, आप कौन होते हो बोलने वाले? गवर्नमेंट का कोई से नहीं है क्या? यहां तक कोई क्राइम हुआ है अभी तक? देन व्हाई डोंट ही बाय फ्रॉम ओईएम? वहीं पर तो पूरा गमला है, मतलब पूरा झमेला उधर ही तो है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, डोंट आस्क क्वेश्चंस, अभी पूरा समझाऊंगा मैं, ठीक है? लेकिन मेरे को अभी एक एक चीज बताओ, क्या यहां तक कोई क्राइम हो रहा है कि एक इन्फ्लेटेड इनवॉइस आ रहा है 1,000 करोड़ का, और इंडिया से 1,000 करोड़ मॉरिशस पहुंच चुके हैं? मशीन आई कि अभी मशीन डिलीवर नहीं हुई है? नहीं हो रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। अब देखना क्या हुआ। अब इस ऑफशोर कंपनी ने, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर था ना, उस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को बोला कि मेरे को एक मशीन चाहिए जो मेरे पोर्ट पे लगेगी इंडिया में। क्या कोटेशन है? ओईएम ने बोला, जो ओरिजिनल एस्कॉर्ट कंपनी ने बोला 50 करोड़ रुपया। मैं करोड़ में समझा रहा हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। उसने बोला डन, दे दे मेरे को मशीन, ठीक है? ओईएम ने इनवॉइस किसके नाम का बनाया? अपने ग्रुप के नाम का। यहां पर 50 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ। दिस इज स्टेप नंबर 3। इनवॉइस किसको गया? इनवॉइस गया मॉरिशस कंपनी को। मॉरिशस कंपनी के पास 1,000 करोड़ रुपया आया था, 50 करोड़ रुपया चला गया। कितना बचा होगा इस कंपनी के पास? मॉरिशस की जो कंपनी है, अभी कितना पैसा कैश में है इस कंपनी के पास? 950 करोड़ रुपीस। क्या इस कंपनी ने ये ट्रांजेक्शन में 950 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर लिया? हाँ कि ना? हाँ कि ना? सोच के बताना, यस और नो। क्या इसको 950 करोड़ पे टैक्स देना है इस कंपनी को? कहां बैठी है कंपनी? मॉरिशस में बैठी है, सेशल्स आइलैंड में बैठी है, माल्टा में बैठी है, बर्म्यूडा में बैठी है। नो टैक्स, टैक्स हेवन कंट्री में बैठी हुई है, कोई टैक्स नहीं देना है। इसने ओईएम को ऑर्डर दिया 50 करोड़ रुपए की मशीन का। अडानी ने 1,000 करोड़ रुपए इसको ट्रांसफर किए, 950 करोड़ रुपए इसके पास बचे में। इसने बोला ये मशीन मेरे को तू मॉरिशस मत भेज, ये मशीन तू सीधे हमारे मालिक को भेज दे। क्या ऐसा होता है? बहुत नॉर्मल बात है, होता है ना? बहुत नॉर्मल बात है यार। अरे तुम एचआर कॉलेज में बैठे हो, ठीक है? तुमने पिज्जा बाय द बे पे ऑर्डर दिया, तुमने कोई थर्ड पार्टी का ऑर्डर दे दिया, उधर डिलीवरी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। जोमेटो पे यही करते हो ना, बैठ के, है ना? फ्रेंड्स को ऑर्डर दे रहे हो, फ्रेंड्स को केक भेज रहे हो, वही तो कर रहा है, फ्रेंड को केक भेज रहा है। जिन लोगों को ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट पता है, वो ड्रॉप शिपिंग ही हो रही है यहाँ पर। आई एम नॉट श्योर कितनों को पता होगा, गूगल सर्च करना। जिनको पता है ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, वो ड्रॉप शिपिंग हो रही है, ठीक है? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। अब ये जो 950 करोड़ रुपीज है, जो 950 करोड़ रुपीज आया है, ये कहां पर इन्वेस्ट हो रहा है? 950 करोड़ रुपीज कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? क्या इसमें कोई क्राइम हो रहा है? दो मॉरिशस की कंपनी है, एक हेज फंड है, एक हेज फंड है, और एक मॉरिशस का कॉर्पोरेट हाउस है। मॉरिशस का कॉर्पोरेट हाउस हेज फंड को पैसा दे रहा है। क्या इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर सकती है इसके अंदर? क्या अपना कोई से है इसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? एब्सोल्युटली नॉट। लोकल रेगुलेशन करेंगे जो करेंगे, वो तो पूरे खुले में। उनकी कंट्री में तो यूएसडी आ गया भाई, 1,000 करोड़ रुपए का। क्या बात कर रहे हो? छोटा सा आइलैंड है मॉरिशस, इज जस्ट अ स्मॉल आइलैंड विद मोर देन 7,000 प्लस लिस्टेड कंपनीज। ये पैसा जो इनके पास आया है 950 करोड़ का, अपन ने पहले देखा था ना, डिसाइड करा था ना, पैसा कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है पैसा पूरा का पूरा? बाइंग फोर्स कौन है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये पैसा कहां पर लग रहा है? ये वाला जो पैसा आ रहा है, दिस मनी। अब मेरे को आप समझा दो बस इतना सा बात, कि ये पूरे के पूरे केस के अंदर, इस पूरे के पूरे केस के अंदर, आई एम सो सॉरी इफ इट इज फ्लक्चुएटिंग टू मच, ये होगा। इस पूरे के पूरे केस के अंदर क्या कुछ भी
क्या कुछ भी इलीगल हुआ आपके हिसाब से? आप एक एक लॉ बता दो जो ब्रेक हुआ इस पूरे के पूरे केस के अंदर। क्या आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया? एवरीवन, क्या सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया? ऑडिटर के नॉट, हाउ ऑडिटर आर नॉट अवेयर ऑफ ट्रू प्राइस ऑफ मशीनरी? ऑडिटर का काम फ्रॉड निकालना थोड़ा ना है। ऑडिटर का काम है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना। जो लोग सीए कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो सीए कर रहा है या जिन्होंने ऑडिट पढ़ा है, क्या ऑडिटर का काम फ्रॉड निकालना होता है किसी कंपनी के अंदर, या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता है? उसको लगता है अगर तो देखेगा, वो इस माइंडसेट से नहीं जाएगा कि मेरे को फ्रॉड निकालना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। और यहां पर ऑडिटर को अपॉइंट किसने किया है? ऑडिटर एक 25 साल का लड़का है अडानी इंटरप्राइजेस में। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम नॉट सेइंग कि 25 साल का लड़का ऑडिट नहीं कर सकता, ही इज एलिजिबल टू ऑडिट, बट डू यू थिंक ही इज एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंट टू साइन अ रिपोर्ट टू टेक द अकाउंटेबिलिटी इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग? भाई, मोर देन 975 सब्सिडरीज का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है अडानी ग्रुप का। फट जाती है साइन करने में, 50 सब्सिडरी कंपनीज होती है ना, तो ऐसे ऐसे हाथ हिलता है ऑडिटर्स का, मैंने देखा है मेरी आंखों से। एक 25 साल का लड़का साइन कर रहा है रिपोर्ट। आई होप योर क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड। ठीक है। और वो तो सैंपल बेसिस पे काम करेंगे, उनको तो पता है ना, उनको बता दिया जाता है कौन सा सैंपल पिक करना है कौन सा नहीं करना है। मतलब नॉट अक्यूजिंग, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ माई इंस्टीट्यूट आईसीआई, राइट? वी आर द flag bearers of the economy, one of the flag bearers of the economy, and I'm proud about it, no doubt. बताना राउंड ट्रिपिंग किधर हुई है? ईशान तू मेरे को ये तो बता, राउंड ट्रिपिंग कहां पर हुई है? ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना अभी। ये तो एक्विजिशन है जो हिंडनबर्ग ने लगाया है। सेबी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। सेबी की तरफ से आपने कोई स्टेटमेंट सुना है अभी तक? आरबीआई ने बोल दिया बैंक्स आर सेफ, ठीक है, तो बैंक आरबीआई ने बोल के बैंकिंग स्टॉक को बचा लिया कि भाई बैंकों को मत ठोको, पीएसयू बैंकों को जबरदस्ती, वो सेफ है, ठीक है। क्या आपने सेबी की तरफ से एक कंक्रीट इन्वेस्टिगेशन भी सुना है अभी तक? मैं क्वेश्चन लूंगा दीक्षा आपका, रुक जाओ, बहुत लंबा है, पढ़ना पड़ेगा अभी। क्या आपने एक भी कंक्रीट इन्वेस्टिगेशन सुना है? सो माय स्क्रीन, आई कैन सी द क्वेश्चंस हियर, आई एम टॉकिंग हियर, आई वोंट रीड द क्वेश्चन, राइट? नहीं सुना है सर। इज नॉट इवन अ सिंग, अरे कम से कम कुछ नहीं तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के, एक सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को बिठा के, ठीक है, टीएन मनोरन सर जैसे जो लोग हैं जिन्होंने पहले बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन करे, उनकी एक कमेटी बिठा के, अंडर हाई कोर्ट सुपरविजन, अंडर सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन, एक कमेटी, एटलीस्ट एक इन्वेस्टिगेशन तो लॉन्च करते। दे हैव नॉट इवन डन दैट। दैट्स सो बैड, राइट? एवरीवन इज मम। दैट्स इट। आई होप ये यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबको अच्छे से समझ में आया? आई नो आई एम लाइक ओवर शॉर्ट टाइम, बट आपको पूरा फंडा समझ में आया कि स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन कैसे हो रहा है अडानी ग्रुप में? परफेक्ट। एवरीवन, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई। क्या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस टाइम पर? आई विल आस्क यू अ फेवर, जहां भी बैठे हो ना, जूम मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले लो, जूम मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले लो। I will tell you, I will rather ask you for a favor, what to do, right? At the end. Now please understand, मैं स्लाइड भी दे दूंगा, स्लाइड के लिए स्क्रीनशॉट मत लो, ठीक है? डोंट टेक दैट, वो तो मैं दे दूंगा, मैं महक को भेज दूंगा, शी विल से एवरीवेयर, ठीक है? इंडिया में कोई एक्शन ही नहीं हो सकता भाई, क्या कर लोगे आप स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन पे? क्या स्टॉक प्राइस अडानी ने मैनिपुलेट करे? नहीं, स्टॉक प्राइस तो मॉरिशस फंड ने। भाई मॉरिशस फंड का पैसा है, उसको 100 रुपए पे खरीदना है, 10,000 पे खरीदना है, वो उसका लुकआउट है। गवर्नमेंट कौन है बोलने वाली? फ्री मार्केट है दोस्त। नॉर्थ कोरिया चाइना थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी मार्केट में स्टॉक के प्राइस को। क्या इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मार्केट में स्टॉक के प्राइस को? नहीं, ऑक्शन मार्केट है। जाओ खरीदो, दोनों आपस में डिसाइड करो क्या कितने पे खरीदना है, कितने पे बेचना है, ठीक है? नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाट यू शुड डू नाउ। देखो, दो चीजें हो सकती है, ठीक है? या तो आपके पास अडानी की होल्डिंग्स होंगी, अगर आपके पास अडानी के मेन इन्वेस्टमेंट है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप प्लान कर रहे हो अडानी में इन्वेस्ट करने का तो आपको क्या करना चाहिए। इन दोनों पे छोटा सा डिस्कशन करते हैं और सेशन एंड हो जाएगा। अगर आप अडानी में इन्वेस्टेड हो तो आप सिर्फ एक काम है इस समय जो बहुत अप्रोप्रिएटली कर सकते हो, ठीक है? वो भगवान से प्रार्थना करो,
ठीक है, इफ यू आर इन्वेस्टेड तो भगवान से हाथ जोड़ो और बोलो हे भगवान, वापस अडानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक को 4,000 रुपए पे लेके आ जा जहां मैंने खरीदा था. यू कांट डू एनीथिंग एल्स, और यू कैन बुक लॉसेस. दैट्स इट. यू आर स्कैम्ड. ठीक है, यू आर ऑन द टिप ऑफ दैट आइसबर्ग, जो पिरामिड की टिप पे बैठ गए थे आप जाके. ठीक है, अगर आपने उतने उतने बड़े स्टॉक, उतने उतने हैवी वैल्यूएशन पे स्टॉक को खरीदा है तो. ओके, एंड इफ बाय चांस, ठीक है, ठीक है, इफ बाय चांस you have not invested in the stock, then I would advise you, don't try to catch a falling knife. गिरते चाकू को हाथ मत लगाओ, हाथ कट के निकल जाएगा बाहर. Your hands will bleed badly. सर आप क्यों ज्ञान दे रहे हो, आपने तो खुद अंबुजा सीमेंट में स्टॉक खरीदा है. हाँ तो डैडी सिगरेट पीते अपने को मना करते ना पीने के लिए. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ डैडी, राइट, बट मैंने जो इन्वेस्ट किया है ना, दैट इज जस्ट 0.5% ऑफ माई पोर्टफोलियो. कल को अंबुजा जीरो भी हो जाएगी तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा. एंड आई नो अंबुजा वोंट बी जीरो, राइट, बिकॉज इट्स अ लेजिट बिजनेस. इट्स नॉट अ अडानी बिजनेस. अडानी तो अभी 6 महीने पहले खरीदा है, कंपनी तो कई सालों से चल रही है. हॉलसिम सीमेंट, इफ यू नो अबाउट दैट कंपनी, हॉलसिम सीमेंट, इट्स स्विस बेस्ड, इंडियाज लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी, स्विट्जरलैंड बेस्ड बिजनेस है. उसका कंपनी था अंबुजा सीमेंट, उससे अडानी ने खरीदा है. इट्स ओनली कंपनी, इट्स द ओनली कंपनी जो अडानी का जीरो डेट पे खड़ा है इस टाइम पर. तो जैसे ही एक एयर क्लियर होती है, सबसे पहले रॉकेट होगा अंबुजा सीमेंट. मतलब मैंने जिस प्राइस पे खरीदा है, मेरे को वहां से रॉकेट मिल जाएगा. ठीक है, और अगर नहीं भी होता है तो अंबुजा सीमेंट को कोई टच नहीं कर सकता. मान लो अडानी ग्रुप पूरा स्कैम निकल जाता है, कॉर्पोरेट व्हील लगा हुआ है. अगर आप लोगों ने कॉर्पोरेट लॉ में कंसेप्ट पढ़ा हुआ कॉर्पोरेट व्हील का, एमकॉम स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट होता है प्रमोटर इज डिफरेंट, कंपनी इज डिफरेंट, वन कंपनी इज डिफरेंट, अनदर कंपनी इज डिफरेंट. आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी. ठीक है, नहीं अगर ये प्रूव होता है तो ही विल बी बिहाइंड द बास. अगर ये चीज सब्सटैंशिएट हो जाती है ना, अमनूर रजा इज आस्किंग, राइट, कि पहले ये तो बताओ कि फ्रॉड क्या हुआ है. द फ्रॉड इज पंपिंग द स्टॉक प्राइसेस. इट इज नॉट अलाउड. मल्टीपल लॉज ब्रेक होंगे इसके अंदर. इफ यू गो एंड रीड द सेबी एक्ट ना, by the time this substantiate this thing, Adani will be behind the bar for the rest of his life. Insider trading से लेकर के प्रमोटर सीलिंग ब्रेकेज से लेकर के राउंड ट्रिपिंग तक, सारे के सारे एक्विजिशन अगर प्रूव हो गए तो देयर विल बी नो अडानी. और बात छोड़ दो ना भाई, ग्रुप कोलैप्स हो जाएगा. जो 2% रिटेलर्स हैं, जो LIC का पैसा है, जो बैंक्स की होल्डिंग्स हैं, वो जो बैंक्स ने डेट दिया हुआ है, वो सब का सब खत्म हो जाएगा रातों रात. और बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है भाई, लिक्विडेट करके कंपनी को लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, हाई कोर्ट लिक्विडेटर अपॉइंट करता है. ठीक है, वाई सेबी इज नॉट टेकिंग एक्शन, अमन पूछ रहा है. बिकॉज डर का माहौल बना हुआ है. यू ऑल्सो नो दैट वाई ही इज नॉट टेकिंग द एक्शन, राइट. यू एवरीवन नोज अडानी किसकी गोदी में बैठे हुए, राइट. कैन यू रिपीट सर, दे कैन रिपीट दिस प्रोसीजर. हाँ, दे कैन रिपीट इट अगेन, व्हाई नॉट. करेगा ना अगेन, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं. आपको क्या लग रहा है एफपीओ क्यों आ रहा था, आपको लग रहा है एफपीओ को पैसा उगाने के लिए चाहिए था. व्हाट डू यू थिंक. युग सलेचा ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, आपको क्या लगता है युग, आप बताओ गाइस, आपको क्या लगता है जो अभी एफपीओ आ रहा था, वो एफपीओ किस चीज के लिए आ रहा था. मार्केट में फ्लोट बढ़ाने के लिए आ रहा था ना, ताकि और इन्वेस्टमेंट हो. अरे खरीदोगे कब स्टॉक को, और ऊपर कैसे जाएगा. अडानी इंटरप्राइजेस 10,000 तक कैसे जाएगा. उसके लिए मार्केट में स्टॉक तो होना चाहिए ना. कोई तो खरीदे, कोई बेचेगा तभी कोई खरीद पाएगा ना. दे हैव सेड इन इन्वेस्टर्स फेवर टू विड्रॉ आईपीओ. इन्वेस्टर ने तो पैसे ही कहाँ लगाया, गगन. गाइज आई नो, आई एम श्योर, अगर आप ट्रैक कर रहे हो, क्या अडानी के एफपीओ ने, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था, रिटेल इन्वेस्टर्स ने. 0.2%, 0.3%. कौन बचाने आया था उनको, जिंदल आया था बचाने. ठीक है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड आ गया था बचाने, मुकेश भाई बचाने आ गए थे, सुनील मित्तल बचाने आ गए थे. उन्होंने भी अगले दिन फोन लगा दिया कि ये क्या स्यापा चल रहा है दोस्त, 3200 रुपए पे सब्सक्राइब करा है, स्टॉक प्राइस 2000 हो गया तेरा, आज वापस कर दे पैसा इज्जत से. ठीक है, ये नहीं चलेगा, इतनी दोस्ती नहीं चाहिए हम धंधे में.
गेटिंग माय पॉइंट? तो देना पड़ा ना वापस, कुछ नहीं कर सकता. इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ इन्वेस्टर बिकॉज देयर इज नो इन्वेस्टर इन द आईपीओ. भाई दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, जिन्होंने पैसा लगा दिया था बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, कि चल ठीक है यार ले ले. ठीक है, गुडविल इन्वेस्टिंग होती है. आप लोगों ने सुना है नहीं सुना है पता नहीं. जब आईपीओ आया था डीमार्ट का, तब राकेश झुंझुनवाला ने ऐसे ही 500 करोड़ रुपए दे दिए थे कि यार तू तो मेरा दोस्त है, आजा, हम तो पुराने मंदड़ी है. ठीक है, मनु भाई के टाइम के. गुडविल इन्वेस्टिंग बोलते हैं इसको. दोस्त दोस्त की कंपनी में पैसा लगा रहा है. आई होप यहां तक बहुत ही ज्यादा क्लियर हुआ होगा. इट वोंट इम्पैक्ट इन लॉन्ग रन. कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट सुना. डायरेक्ट मैसेज मत करो आप, एवरीवन पे भेजो मैसेज. आई वोंट रीड एनी डायरेक्ट मैसेज henceforth. तो लोगों को लगेगा पता नहीं वो क्वेश्चन आया नहीं आया. डोंट डू दैट. ठीक है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली. बी ब्लंट. मैं यहाँ खड़े होकर सबके सामने बोल रहा हूँ कि अडानी अगर स्कैम निकलता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी द पार्टी. आप क्यों डर रहे हो यार, किससे डर रहे हो? वी आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री, राइट? आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है सबके पास. ठीक है, एंड आई ट्रस्ट माई कॉन्स्टिट्यूशन, आई ट्रस्ट माई कंट्री. आई एम बेटिंग ऑन इंडिया, राइट? तो कोई पूछ रहा है कि इज दिस प्रूव्ड दैट अ स्कैम विल बी, इफ इट इज प्रूव्ड एज अ स्कैम विल इट अफेक्ट इंडियाज ग्रोथ? शॉर्ट टर्म में थोड़ा डंडा लग सकता है, बट आपको लगता है लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ रुक जाएगी अडानी के कारण? भाई कुछ नहीं है अडानी अडानी, सीरियसली बता रहा हूँ. हाँ ठीक है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट लगेगा, बट अगर समझो ना इतना बड़ा ग्रुप होता, ऐसा नहीं है भाई. प्लेयर्स विल इमर्ज, डोंट वरी, डोंट वरी. द वर्ल्ड विल सी, द स्पेक्टेक्युलर पार्लियामेंट हाउस व्हेन इट विल बी ओपन. पता है ना, पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है इंडिया का. कौन बना रहा है पता है आप लोगों को? लैंडमार्क बिल्डिंग बनेगी वो अगले 200 साल के लिए इंडिया के लिए. हु इज द बिल्डर, हु इज द कॉन्ट्रैक्टर? टाटा कंस्ट्रक्शंस, राइट? एल&टी कंस्ट्रक्शंस, उनके जॉइंट वेंचर मिलके बिल्डिंग बना रहा है, पार्लियामेंट हाउस बना रहा है नया इंडिया का. तो इट्स नॉट दैट कि अगर अडानी नहीं होगा तो रोड्स नहीं बनेंगे, अडानी नहीं होगा तो पोर्ट नहीं बनेंगे. इट इज नॉट अबाउट दैट, राइट? द आइडिया इज डोंट कंसिडर अ पर्टिकुलर ग्रुप बिगर देन द इकोनॉमी, बिगर देन द कंट्री. इंडिया उसके पहले भी थी, इंडिया उसके बाद भी चलती रहेगी. और 2-3 साल पहले तो, और 4 साल पहले तो अडानी की एग्जिस्टेंस को भी कोई मानने को तैयार नहीं था कि अडानी करके कोई ग्रुप है. आप लोगों ने नाम सुना था क्या 4 साल पहले अडानी ग्रुप का? 2018-2019 में एनीबडी न्यू अबाउट अडानी ग्रुप, कि अडानी करके कोई बंदा है? पता भी था आपको? क्या फर्क पड़ता है भाई, जितना ऊपर तेजी से गया उतना वापस नीचे आ जाएगा. 2-4-5 क्वार्टर बाद जब रिजल्ट्स वापस सब कंपनीज के अच्छा आना शुरू कर देंगे, तब सब भूल जाएंगे. कोई याद करता है रामलिंगम राजू को? कोई याद करता है पीएनबी स्कैम को? मेमोरी इज वेरी शॉर्ट. पीपल विल मूव फॉरवर्ड. पैसा बनना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए. दैट्स इट. ठीक है, थैंक यू सो मच. आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछिए. ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इफ यू हैव नॉट कनेक्टेड विथ मी, तो यूट्यूब पे आई रन अ चैनल कॉल्ड इज द वैल्यूएशन स्कूल. प्लीज गो एंड वॉच द वीडियोज ओवर देयर. बहुत अच्छे वीडियोज हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग पे. मैं आगे कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी काफी सारे अच्छे वीडियोज लेके आने वाला हूँ. टेलीग्राम पे मैं ऐसे ही बहुत सारे लाइव सेशंस करता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे. ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक ट्वाइस इन अ मंथ वी डू दैट. एक मेरा एएमए होता है, आस्क मी एनीथिंग, जहां पर आई यूजुअली गिव करियर एडवाइजेस एंड फाइनेंस करियर रिलेटेड एडवाइजेस टू स्टूडेंट्स. और एक होता है जो मास्टर मेंटरिंग सेशन होता है, जहां पर या तो मैं किसी चीज पे मेंटरिंग देता हूँ जहां पर आई एम वेरी गुड एट इट, या आई इनवाइट एनीवन हु कैन गाइड स्टूडेंट्स बेटर. एंड डेफिनेटली अगर if any one of you are still not connected on LinkedIn, so please feel free to share a connection request and enjoy my content. Right. What's your opinion on banks' involvement in Adani loan? It's very negligible. It's very, very negligible. Let me take the question and answer. It's okay. If people are sitting till quarter to 10, I believe I'm absolutely fine. General questions. Many scam manipulation happen through shell companies. So why don't regulator make a strict law and process for such companies? नहीं, लॉस तो बने हुए हैं ना, बट स्टिल लूप होल्स निकलते हैं. दीक्षा, लॉ बनने के पहले लूप होल निकल जाता है. देखना, एक किताब है, आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों ने कभी पढ़ी हो तो. आप ये फ्लोरा फाउंटेन जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगी. ठीक है, वो फ्लोरा फाउंटेन पे देयर वाज दिस बुक शॉप्स लगती है ना जो छोटी छोटी, या किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर जो किताब बेचने वाला होता है उससे ले लेना यार. ठीक है, एक किताब है पोलिएस्टर प्रिंस.
ठीक है, द राइज ऑफ धीरू भाई अंबानी, इसको लिखा है हामिश मैकडोनाल्ड ने। इट इज बैंड इन इंडिया, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, यू हैव टू बाय द पायरेटेड स्टफ, आपको वहां से खरीदना पड़ेगा, गूगल पे पीडीएफ मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। सो हामिश मैकडोनाल्ड वाज अ जर्नलिस्ट जिसने बहुत लंबा टाइम धीरूभाई अंबानी के साथ बिताया। इस किताब में किस्सा है जब धीरूभाई अंबानी ने थ्रेटन किया था फाइनेंस मिनिस्टर को कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इंडिया के स्टॉक मार्केट को क्रैश कर दूंगा। नॉट श्योर, सुवेश बोल रहा है आई एम रीडिंग इट करंटली, हैव यू रेड दिस इंसिडेंट? शुरुआत में मिल जाएगा तेरे को, इनिशियली स्टार्टिंग में ही है, जहां पर हामिश मैकडोनाल्ड बैठा था और ये फोन पे बात चल रही थी। ये लिखा हुआ है मैंने, पॉलिएस्टर प्रिंस, द पॉलिएस्टर प्रिंस, राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी। The name of the book is, title is Polyester Prince, subtitle is The Rise of Dhirubhai Ambani, the writer is Hamish McDonald। कर लेना है आपस में शेयर, आप तो एजुकेशनल के लिए यूज करोगे इसको, ठीक है। ये बुक जैसे है ना, मुकेश भाई ने इसको रातों रात बैन करवा दिया था इंडिया में। इतना सोचो, अगर मुकेश भाई को कोई बुक बैन करानी पड़ रही है तो बुक में क्या क्या लिखा होगा, ठीक है, सोच के देखना कभी। एंड अगेन दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड रीड। सर वुड यू अपलोड दिस वीडियो ऑन, आई वोंट, मतलब मैं एक सेशन इस पे अपलोड करूंगा बट वो दूसरा रहेगा, नॉट दिस। जस्ट अ मिनट, कैन यू हेल्प मी? जस्ट अ मिनट, टाइम, अभी मैं चैट पे रिवर्ट दे रहा हूं, मेरे को नहीं सुनाई देगा कुछ भी, लेकिन मैंने लगाया नहीं वो हेडफोन्स। सो बट इजंट फेयर वैल्यू सब्जेक्टिव फॉर एवरी वैल्यूअर? डज इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज प्ले अ रोल इवन इन वैल्यूएशन? एब्सोल्युटली यस। क्या ईशान, तू और मैं, अगर ईशान आप और मैं डेटामेटिक्स करके कंपनी जो डेटा एनालिसिस करती है, इन दोनों का वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, और आप एक नोविस हो और मैं डेटा साइंटिस्ट हूं, तो क्या हम दोनों का वैल्यूएशन अलग अलग आएगा? यार चल मैं डेटा साइंटिस्ट नहीं भी हूँ, छोड़ देना, मैं नॉर्मल पार्थी हूँ, और तू वैल्यूएशन कर रहा है, मैं वैल्यूएशन कर रहा हूँ, क्या दोनों वैल्यूएशन अलग अलग आएंगे, हाँ कि ना ईशान? एब्सोल्युटली ना। तेरा बिजनेस को देखने का नजरिया अलग है, तू ग्रोथ रेट कुछ और देगा, मेरा नजरिया अलग है, मैं ग्रोथ रेट कुछ और दूंगा। डेटा एनालिस्ट है वो ग्रोथ रेट कुछ, डेटा साइंटिस्ट है वो ग्रोथ रेट कुछ अलग देगा, उसको पता है रियल पोटेंशियल क्या है डेटामेटिक्स कंपनी का, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑलवेज डिपेंड, सी वैल्यूएशन कैन नॉट बी करेक्ट। किसी ने अगर बोल दिया ना कि एक्यूरेट वैल्यूएशन है तो उससे दूर हो जाओ भाई। मैं तो बोलता ही हूँ जब भी मैं वैल्यूएशन करता हूँ, या वैल्यूएशन, अभी आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज वैल्यूएशन ऑफ द वीक करके ऑन लिंक्डइन, जहां पर वील स्टार्ट अ न्यूज लेटर, ठीक है। एवरी वीक वील वैल्यू वन कंपनी, आवर स्टूडेंट्स विल रादर वैल्यू वन कंपनी, and I'll just overlook it, supervise it, and we'll post it as a newsletter, right? And we'll mostly pick the controversial companies जिनकी बात हो रही है। तो जब ऐसा होता है, ठीक है, तो वैल्यूएशन डिफर्स फॉर पर्सन टू पर्सन, दिस इज अ वेरी 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 सब्जेक्टिव थिंग, इट्स नॉट अ साइंस, इट्स नॉट अ क्राफ्ट, इट्स नॉट अ आर्ट, इट्स अ क्राफ्ट। द मोर यू डू इट द बेटर यू विल बी एट इट, ठीक है। गाइस एक बात मेरे को बता दो, आई नो आप सबको भूख लग रहा होगा और आप जाने के चक्कर में हो, लेकिन उसके पहले एक बार चैट पे लिख के बताओ, हाउ वाज दिस सेशन? डिड यू थिंक, कैसा लगा सेशन आपको? हाउ वाज इट? अमेजिंग, ओके। नहीं ये ठीक है, मतलब डोंट गिव मी दैट बटरी वर्ड्स, ठीक है। व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इज, हम पिछले 1 hour 40 minutes, 1 hour 36 minutes से बैठे हुए, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। Do you think so that it added the value in your life for the time of 1 hour 36 minutes you gave over here? That is most important for me. And be blunt, it's absolutely fine. I'm ready to take critics. It improves me more. Perfect, perfect, perfect. Chaliye ji. Yep. Guys, up to you. Well, thank you very much, sir. I don't think I can speak much on behalf of the crowd because they themselves have been sitting very patiently for 2 hours. So Yeah. that So itself proves is it very how difficult to make the HR guys sit for 2 hours in a Zoom session? maybe, but you made them sit for 2 hours. Okay. So yeah, that does speak Okay. on huge levels. Thank you so much for the wonderful session, Thank you so sir. much. I'll hand over to Aparna to say the vote of thanks. Good evening, everyone. I would like to thank Mr. Parth for taking his precious time out
of his busy schedule and talking to us and sharing all his views. The way Mr. Path explained this topic, we all surely taken the important points with us. I would like to thank our principal ma'am, our Jasbir ma'am and Dharti ma'am for guiding us in organizing this informative webinar. I must not forget to thank the students for attending the webinar and asking questions. Thank you so much, everyone. Guys, if anyone has any questions, please feel free to ask. That's absolutely fine. I'm here till the last doubt has been resolved. It's okay. किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछो बिंदास. आप ये कोई क्वेश्चन है जनरल, कोई अंबुजा सीमेंट पे पूछ रहा था व्हाट इज द फेयर वैल्यू. डोंट डू, आई कांट गिव द एडवाइस. ठीक है सर. दामोदरन सर हैज गिवन अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड का वैल्यूएशन एट 940. आई वोंट इवन बाय इट एट 600 आल्सो. मेरे को 500 रुपए पे चाहिए अडानी इंटरप्राइज अगर मैं खरीदूंगा तो. So you need to understand ना, there is the concept called as margin of safety also. Professor दामोदरन ने 10% का probability of failure रखा है. ठीक है. For me the probability of failure is 30%. I told you the valuation is subjective, right? मेरा जो investing framework है वहां मेरे को additional 30-40% का margin of safety चाहिए. क्लेथ कालमन का एक किताब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे, कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना. बहुत सस्ता बुक है, 100-150 रुपए में मिल जाएगा आपको. मार्जिन ऑफ सेफ्टी नाम है किताब का. इट्स अमेजिंग रीड. Amazing read. I am uploading Altaf a video on Hindenburg. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you so much. So, hello, sir. Good evening. So, my question is, sir, what is Adani? It's the Adani group into the investment. हिंदी में ही बोल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं. It's okay. Nothing to worry about. कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना. सर जो यूएस जो अब्रॉड में जो कंट्री है, जो अब्रॉड कंट्री में जो अडानी ग्रुप के जो कंपनीज है, फार्म्स है, वो उसके अपकमिंग कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लाइक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ये सर. सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया भाविश आपका. आप थोड़ा रिफ्रेश करोगे क्वेश्चन को. सर जो अब्रॉड में कंपनी है अडानी के, तो सर उसके कुछ इन्वेस्टमेंट में कैसे इन्वेस्ट करें सर? अडानी में नो सर, द प्राइवेट फर्म जो है, जो अडानी के जो अब्रॉड में है, वो कंपनी में सर कैसे इन्वेस्ट करें सर? मतलब यू वांट टू इन्वेस्ट? यस सर, लाइक परचेज गॉट इट. देखो सबसे पहले तो मेरा एडवाइस ये रहेगा, मैंने वही बोला आपको, जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है ना, स्टॉक स्पेसिफिक इवेंट होता है ना, तो द स्टॉक विल फॉल लाइक अ फॉलिंग नाइफ. वी शुड नॉट ट्राई टू कैच इट. पूरा डस्ट सेटल होने दो भाई. रातों रात अडानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक प्राइस फिर से 4000 टच नहीं करेगा. ठीक है. पूरी इंफॉर्मेशन को प्राइस में डिस्काउंट होने दो. अभी पहले हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, उसके बाद बवाल हुआ. ठीक है. फिर उसके बाद क्रेडिट स्विस ने अडानी को बैन करा कोलैटरल्स में से. फिर सिटी ग्रुप ने बैन करा कोलैटरल्स में से. ठीक है. फिर MSCI ने, जो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स है, उन्होंने वेटेज कम करा अडानी ग्रुप का. ये सारी इंफॉर्मेशन अभी डिस्काउंट होना बाकी है. मतलब और इंफॉर्मेशन आएंगी फ्यूचर में. ठीक है. तो लेट इट डिस्काउंट. ठीक है. आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू एंटर इनटू एनी अडानी स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Again, I am not a SEBI registered investor, so please ask your SEBI registered investor if you have one. I don't have any authority, any capabilities to give any recommendation to you guys. But जो एक मेरा common sense बोलता है वो ये बोलता है कि मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ. There was this gentleman जो अडानी ग्रुप के CEO हैं, and he put a post कि अडानी, उसने एक पोस्ट डाला, उन्होंने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट थे कि अडानी ग्रुप की ये कंपनी का इतना प्रॉफिट हुआ, वो कंपनी का उतना प्रॉफिट हुआ, एंड ही टैग्ड मी इन दैट पोस्ट. लाइक लिटरली ही टैग्ड मी इन दैट पोस्ट. आप जाके चेक कर सकते हो. अगर आप मेरी एक्टिविटीज में जाओगे, आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, एंड यू विल, आई वोंट नेम दैट गाय, बट थोड़ा कोई बंदा रिसर्च मारेगा तो उसको मिल जाएगा वो पोस्ट नीचे. तो यार मैंने नॉर्मली ऑल द बेस्ट लिख दिया, और क्या करता मैं इससे ज्यादा. वो अडानी ग्रुप का CEO है यार, समझ रहे हो. मैं इंदौर में बैठा हूँ यहाँ पर बंदा. ठीक है. वो रातों रात पता नहीं कहाँ उठा के फेंकेंगे मेरे को. मैंने ऑल द बेस्ट लिख दिया, तो ही जस्ट रिप्लाई कि नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड करेक्ट योर परसेप्शन एंड मेक एवरीवन अवेयर अबाउट द मिस्चीवियस रिपोर्ट, राइट, ऑफ हिंडनबर्ग, एंड इट विल फॉल लाइक हाउस ऑफ कार्ड एंड ये वो.
तो फिर then I came into my my real thing, and I just wrote that I don't have any conflict of interest or bias with Adani stock. I myself have bought it and I have sold it when the financial metrics were way out of my investing framework. Okay, I might buy the stocks again if I'll get it at a cheaper valuation. If not, there are 5,000 other companies to invest into. ठीक है, don't run. Why you want to invest in Adani? क्या अडानी डबल करके देगा? और कोई स्टॉक ही नहीं इंडिया में जो डबल करके देगा आपको अगले 2 साल 3 साल में पैसा. ठीक है, यस जितेन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन लिंक्डइन. क्या कोई है ही नहीं दूसरा स्टॉक? आप ऐसा बोल रहे हो 5,000 में से सिर्फ वो 10 कंपनीज जो पैसा बना के देगी. व्हाई एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड दोस कंपनीज? इवन इफ इट इज अ फेयर वैल्यूएशन, मान लो आज फेयर वैल्यूएशन पे आ गया, क्यों रिस्क लेने का है भाई आपको? वो जीरो हो सकता है ना, समझो ना. जो स्टॉक 4,000 से 1,000 पे आ सकता है वो 1,000 से 200 पे नहीं जा सकता क्या? 5 दिन लगेगा भाई, 5 days. 5 दिन 30% डाउन चाहिए, खत्म हो जाएगी कंपनी. 50 रुपए में भी कोई नहीं खरीदने तैयार होगा. और होता है ऐसा कंपनीज के साथ. DHFL की हिस्ट्री देख लो, यस बैंक की हिस्ट्री देख लो. 350 रुपए का स्टॉक था, 8 रुपए पे आ गया था गिरते गिरते. ठीक है, उसके बाद वापस जंप नहीं हुआ ना. डोंट ट्राई टू कैच फॉलिंग नाइफ. जो 70 रुपए पे खरीदा है वो रो रहा है, जो 50 पे खरीदा है वो भी रो रहा है, जो 30 पे खरीदा है वो भी रो रहा है. डाउन एवरेजिंग नहीं करने का कभी भी, वो बेवकूफ लोग करते हैं लोअर साइड में. हमेशा अप साइड में एवरेजिंग करो लाइफ में. मैंने एक स्टॉक खरीदा था 175 पे, आई वोंट नेम दैट स्टॉक. एक्स अमाउंट का खरीदा था, ठीक है. इट वेंट टू 425. आई इन्वेस्टेड 3x ऑफ द अमाउंट इन दैट स्टॉक बिकॉज आई एंटिसिपेट कि 6,000 रुपए का स्टॉक है अगले 10 साल में, या अगले 5 साल में 3,000 2,000 का तो है. मेरे को जहां मैंने इन्वेस्ट किया, मतलब मैंने 100 रुपया अगर 175 पे लगाया था तो मैंने 300 रुपया और एडिशनल डाला 475 पे. मैं कभी भी डाउनवर्ड एवरेजिंग नहीं करता. जो गिरा है वो और गिर सकता है, बस ध्यान रखना. स्टॉक मार्केट है यार, ठीक है. यू आर वेरी यंग, अभी अपने पप्पा का पैसा मत लगाओ मार्केट के अंदर. पहले खुद कमाओ फिर डुबाना, ठीक है. यस जितेन, आई टोल्ड यू राइट. व्हाई डिडंट द एंटायर एफआई बाइंग पावर ट्राई एंड हेल्प द स्टॉक इन रिटेल? भाई समझो मेरी बात, ठीक है. आप क्या कर लोगे? इट वॉज जस्ट अ रिएक्शन विच कम्स फ्रॉम द रिटेलर्स, राइट. एफआईआई जब बाइंग करता है ना तो इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट. और अभी कितनी बाइंग और कर लेगा? क्या ही बाइंग कर लेगा? कौन करेगा? ठीक है. इट एवरीथिंग बिकेम आउट ऑफ प्रपोर्शन. अडानी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना ज्यादा आउट ऑफ प्रपोर्शन चला जाएगा, इतना ज्यादा ब्लोन हो जाएगा ये चीज. रूलिंग पार्टी इन्वॉल्वमेंट, यार रूलिंग पार्टी इन्वॉल्वमेंट, आई वुड से दैट आई वोंट नेम एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑनेस्टली, ठीक है. आई माई सेल्फ इज द वोटर ऑफ दैट पार्टी, राइट. क्योंकि एक ही लीडर है इस समय इंडिया में भी. हमारा सबसे बड़ा, आई वुड से, अगर इंडिया का सबसे बड़ा, आप इंडिया का शॉर्ट एनालिसिस करोगे ना, तो इंडिया में जो थ्रेट है ना वो ये है, वी डोंट हैव अ सक्सेशन प्लान इन प्लेस इन टर्म्स ऑफ आवर लीडरशिप. दिस इज द रियल थ्रेट विद इंडिया. अपने को पता ही नहीं 2019 के बाद क्या. योगी जी मत बोलना अभी, ठीक है. अभी ही इज नॉट रेडी. He is not ready to represent India on a public, on an international forum. No, not at all. Not at all. I disagree with that thing. ठीक है, हमारे पास कोई विजन नहीं है आगे का. कल को अगर कुछ मिसहैपनिंग होता है अपने करंट प्राइम मिनिस्टर के साथ तो विल बी डूम्ड. सब साथ में डूबेंगे, पूरा पोर्टफोलियो सबका 12 बजेगी. ठीक है, इसलिए मैं हमेशा पुट लेके चलता हूँ. मैं 1 साल, मतलब so what, don't do this please. I'm just sharing this with you. Does not mean it's a recommendation or you should do it. But मैं क्या करता हूँ, मैंने नवंबर 2022 में दिसंबर एक्सपायरी के पुट खरीद रखे हैं 8,000 10,000 के, 10,000 पी निफ्टी. दिसंबर एक्सपायरी, दिसंबर 23 की एक्सपायरी मिलता है. लीप्स बोलते हैं उसको, लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस बोलते हैं. LEAPS, लीप्स, लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस. इट्स इंश्योरेंस, मेरा इंश्योरेंस है मेरे पोर्टफोलियो पर. लेकिन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको कितने लॉट खरीदने हैं. आप एक खरीदोगे और मेरा 2 करोड़ का पोर्टफोलियो, वो एक काम नहीं करेगा ना. माय पोर्टफोलियो विल बी अंडर इंश्योर्ड, ठीक है. तो डू दैट. आप और आगे बढ़ोगे. अभी सी आई एम इन्वेस्टिंग सिंस आई वाज 17, ठीक है. करंटली आई एम 31. सो इट्स बीन लॉन्ग जर्नी. इसमें बहुत पैसा डुबाया है, ट्रेडिंग भी करी है, ट्रेडिंग में भी पैसा डूबा है. बहुत बाद में जाके 2012 में अक्ल आई, 2013 में अक्ल आई कि पैसा सिर्फ इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो तुम ट्रेडिंग से बना सकते हो, वेल्थ इन्वेस्टिंग से बनेगी.
जो वेल्थ क्रिएशन होगा वो इन्वेस्टिंग करेगा, कैश फ्लोज आप बना सकते हो, बट डोंट डू दैट, राइट? सो रूलिंग पार्टी की जहां तक बात कर रहे हैं गगन, तो देख यार क्या होता है ना, इग्नोरेंस भी क्राइम है, because you are not accountable to a particular corporate house, you are accountable to the people of India, right? You are accountable for maintaining the safeguard and maintaining the healthy and competitive environment, business environment in the country for its growth. So if you are mum, you are equally, you are the culprit, right? Could you please give us list of the books you mentioned in this session? So one book is, so there's this one book which I always want you to read. I won't know if you'll be able to read or not is point of time, but I think you should read. First book is this one. अगर कभी रीडिंग स्टार्ट नहीं करी ना तो यहाँ से स्टार्ट मत करना, बट जैसे ही थोड़ा पढ़ने की आदत हो जाए ना, इस किताब को मिस मत करना. The name of the book is The Joys of Compounding. I usually gift this book a lot. This is the most gifted book. मैंने अभी तक बहुत लोगों को गिफ्ट करी है किताब. The Joys of Compounding by Gautam Beth sir. ये उनका पिछले 20 साल का जो उन्होंने स्टडी करा है उसके ऊपर है. I usually don't buy सॉफ्ट कवर में नहीं खरीदता हूँ, ये भी ऐसे ही रखी हुई है. I have the hard cover also. ठीक है. Then there is this book called as Richest Man in the Babylon. Richest Man in the Babylon. अगर एकदम नए इन्वेस्टर हो, आपने कभी नए रीडर हो, आपने कभी किताब पढ़ी नहीं आज तक जीवन में, तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग वगैरह तो जो बुक है वो तो बहुत पॉपुलर है, सौरभ मुखर्जी की, तो दैट वो आई वोंट से. बट इफ यू रियली वांट टू रीड समथिंग, राइट, व्हिच इज वेरी प्रेशियस and you want to understand what is going behind the brain of few super investors in India, then I would recommend you this particular book which I am reading currently. थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, आई एम नॉट श्योर इफ यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट, क्योंकि इसका पीडीएफ मिलेगा नहीं. अगर मिले तो मेरे को भेजना. द नेम ऑफ द बुक इज मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स. सो इट्स द agony is that it's only available in hard cover और ये एमआरपी पे बिकता है. 1250 का बुक है. ये बुक जोन पे मिल जाएगा आपको, ऑक्सफोर्ड में मिल जाएगा. ऑक्सफोर्ड विच इज लाइक नेक्स्ट लेन टू योर कॉलेज, राइट? ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर, उधर मिल जाएगा आपको. फ्लोरा फाउंटेन पे जो बुक जोन है वहां पर मिल जाएगा, उधर से ले लेना. अमेजोन पे तो अवेलेबल है ही. ठीक है. मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर, विशाल मित्तल और सौरभ बरसर. विशाल मित्तल मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर लिखोगे तो मिल जाएगा. ठीक है. देन इफ यू वांट टू रीड व्हाट हैपेंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या क्या कांड हुए हैं, ठीक है, अभी तक, तो ये बहुत अच्छी बुक है और ये बहुत सस्ते में भी आपको शायद मिल सकती है. इसका हार्ड कवर अवेलेबल नहीं था मार्केट में, नहीं तो मैं वही लेता. इट इज स्टार्टेड विद हर्षद मेहता स्कैम एंड कवर्ड फ्यू एस्पेक्ट्स, ठीक है, व्हिच इज बुल्स, बियर एंड अदर बीस्ट्स. बुल्स, बियर एंड अदर बीस्ट्स. You can start reading from here also. Consider it as a novel and you can just start reading it. ये मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर थोड़ी हेवी पड़ेगी आपको. इसमें इंटरव्यूज हैं एक्चुअली, मतलब 40 पेज 50 पेज के इंटरव्यूज हैं. इतना उन्होंने कभी नहीं किसी पब्लिक फोरम में, विजय केडिया सर ने इतनी बात नहीं करी है. रामकृष्ण दवानी, द ब्रदर ऑफ राधाकृष्ण दवानी, उन्होंने कभी इतनी बात नहीं करी है. नेवर. ठीक है. नहीं, आप फिर तो यार दिखा के परेशान हो जाओगे, कितनी किताबें देखोगे ऐसे. ठीक है. बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो स्टार्ट रीडिंग. दैट इज द ओनली वे टू, मैंने वही बोला, इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज क्रिएट करने की कोशिश करो अपनी लाइफ में. ठीक है. और किसी के कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए.